Hello everyone, wish you all a very good evening. I'm Yash Saraf and I'm from the Stockage product team. So basically welcome to the Stockage Smart session today. आप लोग सबका Stockage Smart session में स्वागत है. So basically what we'll be learning today is that we'll be learning how to use Stockage scans, the different features of Stockage, right? So today's session will be divided into three parts. The first part will be about the Stockage scans, and then we'll have a small Q&A session where I'll be solving all your queries, we're replying to all your queries, and then we'll learn how to make our own customized combination scans. That is my combo scans on Stockage, and then again we'll have a small Q&A session, and then we'll have trending. Then we'll learn how to use and how to gain benefit out of trending stocks. Okay, so, and in the end, I will tell you all that how we can use Stockage scans, Stockage my combination scans, and trending stocks all in sync, all together to drive our own edge, to derive our own results, to get better results in the share market. Right. So let me be clear. So you all can raise your queries, and when I will be receiving all the queries, I'll be answering to them in between the three segments, basically. Right. So without wasting any more time, let's proceed with our Stockage Smart session. And I really hope that I'm able to provide some value to all of you and can enhance your learning edge, right? So let's start. So first of all, let me be very clear and let me inform you guys that Stockage was the first one in the Indian equities market to bring this concept of scans. They bring this concept of screeners. So basically, what was the issue was that there are around 5,000 plus stocks listed on market, listed on exchanges, right? So इतना पॉसिबल नहीं है किसी भी एक रिटेल आदमी के लिए, रिटेल यूजर के लिए, बीट इन्वेस्टर और बीट ट्रेडर, टू ट्रैक all those 5,000 stocks together, right? To analyze and track all those stocks together, to filter out stocks on different parameters. किसी स्टॉक का कोई स्टॉक टेक्निकली स्ट्रांग है, कोई स्टॉक टेक्निकली वीक है, कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, कोई स्टॉक फंडामेंटली वीक है, एंड ऑल. So what Stockage has done, Stockage has identified all those broad categories, and Stockage has created this concept of scans, राइट. सो एज यू कैन सी, आपको ये स्कैन्स का जो आइकन है, ये आपको यहाँ पे आपको प्रीमियम एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में सबसे पहला स्कैन्स में आपको मिल जाएगा. एंड व्हाट स्टॉकेज हैज डन इज स्टॉकेज हैज कैटेगराइज ऑल दोस ब्रॉड categories and important filters into these seven broad categories. What are these? वो है सबसे पहले प्राइस स्कैन्स, दैट इज प्राइस एक्शन, राइट. प्राइस एक्शन, लेट मी टेल यू, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स, because if we understand the price action, the price trend of the stocks, then only we'll be able to track them and trade them, right? Then we have volume and delivery scans, which deals us with this the demand and supply of the stocks, like which are these stocks that are seeing heavy demand or heavy supply, right? Then we have technical scans. In technical scans, we have covered almost all of the important indicators available in the market. Then we have fundamental scans. As we all know, there are n number of data points available in the fundamental category. There are different kind of filters and important filters. So we have categorized all of them under the fundamental scans. Then we have futures and option scans, strike-wise option scans. All these two scans relates to the FNO data. And then in the end, we have candlestick scans, which are based out of candlestick patterns, like the different patterns a candlestick form and what does it tells us, right, about that stock pattern. So let's proceed. So let me tell you all that currently we do have 450 plus scans. That's right. We have 450 plus scans, out of which 70 to 80% of the scans are totally free. Free for all of the users, right? So anyone and everyone can use the respective free scans, and only the 20 to 25, the remaining percent of the scans are paid, right? So what I will be doing is, as there are a lot of number of scans, so we'll be proceeding with each category, and I will be explaining about some good categories and good scans, and then you can go through with respect to all your favorite scans, whatever you like and desire to interpret and track. So let's start with price action. So in price scans, what you will be seeing is कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप कई सारे पीरियोडिक स्कैन्स दिख रहे हैं, ब्रेकआउट स्कैन्स, राइट. सो प्राइस स्कैन्स क्या होता है कि बेसिकली आज मेरा एक पीरियड के अंदर उस स्टॉक का क्या प्राइस एक्शन है, क्या प्राइस स्ट्रेंथ है, राइट. इसलिए आपको दिख रहा होगा प्रीवियस डे ब्रेकआउट स्कैन्स, वीकली ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट, 52 वीक ब्रेकआउट, 2 ईयर, 5 ईयर, ऑल टाइम ब्रेकआउट स्कैन्स, राइट. रिलेटिव परफॉर्मेंस, रिलेटिव स्ट्रेंथ.
तो हम लोग एक एक करके समझते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट वीकली ब्रेकआउट स्कैन्स. तो व्हाट एंड स्टॉकेज में आप लोग एक चीज और बताता हूँ कि इन स्टॉकेज व्हाट वी एम्फसाइज ऑन, हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं एंड काफी ज्यादा ध्यान देते हैं इस चीज पे कि हम लोग वॉट एवर स्कैन्स वी पब्लिश और वॉट एवर फीचर्स वी पब्लिश, वी मेक इट सो सिंपल टू एंड इजी टू अंडरस्टैंड कि एनी यूजर हु इज इवन न्यू टू मार्केट कैन अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल हम लोग टर्मिनोलॉजीज को काफी सिंपल रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई, it is very well self-sufficient and self-explanatory that it will filter out, this scan will filter out those stocks जिन्होंने अपना लास्ट वीक के हाई को नीचे से क्रॉस करके क्लोजिंग दिया है. ठीक है. सो अब हम लोग स्कैन के अंदर जाते हैं. सो क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई. तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ऑल दी फीचर्स, जो जो फीचर्स आपको अवेलेबल है इन दी अंडर द स्कैन मॉड्यूल, अंडर द स्कैन सेक्शन. आप क्या क्या फीचर्स के थ्रू यूज कर सकते हो, फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट दैट. ठीक है. So first of all, the very most important thing is कि whenever you come to a scan, whenever you go to a scan, then and if you don't understand what that scan is all about, then what you need to do is आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस आई सेक्शन पे क्लिक करना है. सो आप जब इस आई सेक्शन पे क्लिक करोगे, यू विल गेट टू सी कि इस सेक्शन के बारे में, इस स्कैन के बारे में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेस्पेक्टिव स्कैन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेस्पेक्टिव स्कैन, यू विल गेट टू नो. तो आप जब इसको पढ़ लोगे, देन यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट कि ये जो स्कैन है ये आपको क्या डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या स्टॉक्स फिल्टर करके दे रहा है एंड ऑन व्हाट बेसिस दे रहा है. Right. And even if you still don't understand, then what you can do is, you are almost in almost all of these scans, there's a short video अवेलेबल, शॉर्ट क्लिप अवेलेबल, जिसको देख के आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इस स्कैन के थ्रू आप कैसे ट्रेड कर सकती हो, क्या स्टॉक्स आती है, कैसे आती है एंड ऑल. आपको इस स्कैन्स का पूरा जिस्ट आपको इस सेक्शन से थ्रू मिल जाएगा, सो दैट यू आर वेरी वेल गेट ऑफ विद दिस स्कैन. ठीक है. अब हम लोग आते हैं स्कैन्स के डिफरेंट फीचर्स पे. वंस यू हैव अंडरस्टूड दैट स्कैन, देन यू नीड टू नो हाउ टू यूज दैट स्कैन, राइट. तो मैं आप लोगों को जो स्कैन का मॉड्यूल समझा रहा हूँ कि इसको यूज कैसे करें, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी अदर स्कैन्स एज वेल. ठीक है. तो सबसे पहले आपको अगर मैं दिखाऊं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेजर स्टॉक्स का फिल्टर दिख रहा होगा, राइट. सो लेट मी टेल यू कि हम लोग इन स्टॉकेज व्हाट वी प्रोवाइड दिस एडवांस फिल्टर सेक्शन, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम लोग कोई लॉजिक लगा रहे हैं क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई, सो इट देयर कैन बी सिनेरियो कि जब मार्केट में 5,000 स्टॉक्स में से 150 स्टॉक ने अपना लास्ट वीक हाई के ऊपर क्रॉसिंग दिया, या 500 स्टॉक्स ने दिया. सो उन 500 स्टॉक्स में भी अगर आपको और फर्दर फिल्टर लगाना है, इफ यू वांट टू डू योर कंटिन्यू फर्दर एनालिसिस, देन दिस एडवांस फिल्टर कम्स इनटू प्ले, राइट. सो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मेजर स्टॉक्स. सो व्हाट इज दिस मेजर स्टॉक्स, यू विल सी कि ये जो मेजर स्टॉक्स का फिल्टर है ये हर स्कैन में अप्लाइड है. सो व्हाट इज दिस, so let me tell you, major stocks is an in-house stockist filter, right? Is that it is an in-house stockist filter, and it means and it includes the top NSE and BSE 500 companies. That's right, right. Major stocks is the combination list, combined list of top NSE and BSE 500 stocks. So why we have created this filter? Because what we have experienced and what we have learned throughout the years that कि अगर आपको मार्केट का सेंटीमेंट को समझना है, कि इफ यू वांट टू गॉज द ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट एंड अंडरस्टैंड इट, देन इफ यू आर एबल टू ट्रैक द टॉप 500 स्टॉक्स, राइट, द टॉप 500 स्टॉक्स इन द मार्केट, देन यू विल गेट अ रफ ओवरव्यू, अ फेयर व्यू कि अभी मार्केट बुलिश है कि बेयरिश है. फॉर एग्जांपल, अगर आप इसी स्कैन में देखोगे एंड इफ यू सी क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई, सो अगर ये 500 स्टॉक्स के अंदर, इफ आई टेक एग्जांपल कि 500 स्टॉक के अंदर, इफ यू सी दैट दिस लिस्ट इज एक्चुअली वेरी ह्यूज, जैसे ये लिस्ट है, इट इज अ गुड अमाउंट ऑफ नंबर. सो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज कि हाँ अभी मार्केट्स बुलिश में है. व्हाई? बिकॉज अगर टॉप 500 स्टॉक में से देयर आर अराउंड 20% ऑफ स्टॉक्स दैट आर एक्चुअली 20 to 30% ऑफ द स्टॉक्स दैट आर एक्चुअली क्लोजिंग और ट्रेडिंग अबव लास्ट वीक्स हाई. मतलब आपको समझ में आएगा कि लास्ट वीक के कंपैरिजन अभी मार्केट्स अभी भी बुलिश है, इसीलिए एक अच्छा स्टॉक डिसेंट आउटपुट आएगा. मेनी टाइम्स यू विल सी कि जब मार्केट्स करेक्ट होते हैं या मार्केट्स बेरिश होते हैं, तो इन सब स्कैन्स के अंदर आउटपुट बहुत कम आता है. जो भी बुलिश स्कैन्स होते हैं उसमें आउटपुट बहुत कम आता है मेजर स्टॉक्स का, राइट. तो उसमें आपको समझ में आएगा कि नहीं मार्केट्स अभी खराब है, राइट. क्योंकि वाई वी हैव क्रिएटेड दिस डिफरेंशिएशन, बिकॉज देयर आर सम स्टॉक्स that goes with the market, that are perfectly related with the market. अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो वो मार्केट ऊपर, स्टॉक्स ऊपर जाएंगे. अगर मार्केट नीचे जाएगा देन स्टॉक्स नीचे जाएंगे. एंड देयर आर सम स्टॉक्स दैट इज अपार्ट फ्रॉम दी टॉप 500 स्टॉक्स, उसमें क्या मार्केट के साथ कोरिलेशन काफी कमती है. कई ऐसे स्टॉक्स है जिनको मार्केट से फर्क ही नहीं पड़ता, मार्केट ऊपर गिरे नीचे गिरे वो अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखते हैं, राइट. तो इसीलिए वी हैव क्रिएटेड दिस मेजर स्टॉक्स फिल्टर. सो व्हाट आर दी अदर फिल्टर्स?
अगर आपको अदर फिल्टर्स में चाहिए तो आप ऑल स्टॉक्स कर सकते हो, दैट यू कैन रिमूव दिस मेजर स्टॉक्स फिल्टर। और या आपको सिर्फ इफ यू वांट टू ओनली फिल्टर एनएससी स्टॉक्स या बीएससी स्टॉक्स, या आपको सिर्फ एनएससी एफएनओ स्टॉक्स को फिल्टर करना है कि कौन से स्कैन के अंदर एफएनओ स्टॉक्स क्वालिफाई हो रहे हैं, या देयर आर मेनी न्यू traders or investors out there in the market who are very risk averse and who want to track with only the safest stocks, safety stocks. Then what they can do is they can start with the filter of Nifty 50, because obviously tracking and investing in the Nifty 50 stocks are compared to be the safest options, right? So हम निफ्टी 50 का फिल्टर लगा सकते हो। यू कैन अप्लाई द फिल्टर ऑफ निफ्टी 200, निफ्टी 500, और ऑल्सो बीएससी पीएसयू। दैट मीन्स कि अभी आप लोग ने सबने सुना होगा कि लास्ट 1-2 साल से पीएसयू कंपनीज काफी ज्यादा लाइमलाइट में है। तो अगर आपको पीएसयू स्टॉक्स का फिल्टर लगाना है, देन यू कैन ऑल्सो पीएसयू स्टॉक्स, दैट इज बीएससी पीएसयू। देन उसके बाद क्या होता है कि दे वांट टू फिल्टर ऑफ एनी स्टॉक्स, तो दे कैन अप्लाई दिस फिल्टर ऑफ बिलो रुपीज 10 और 10 to 100। और उनको अगर उनके एक प्राइस रेंज का उनको स्टॉक्स चाहिए, दैट इज 100 से 1000 के बीच में या 1000 के ऊपर का स्टॉक्स, तो वो इसके थ्रू फिल्टर कर सकते हो। सेम वे मार्केट कैप कैटेगरीज, दैट मीन्स लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सो बेसिकली क्या है कि टॉप 1 to 100 जो कंपनीज है, दैट इज टॉप 1 to 100 जो कंपनीज है, दैट आर लार्ज कैप कंपनीज। फिर 101 से जो 250 कंपनी, दैट आर मिड कैप, एंड 250 के ऊपर जितनी भी कंपनीज है वो सारी की सारी स्मॉल कैप होती है। एंड ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक्सचेंज के द्वारा दिया हुआ है, राइट? सो अगर आपको बेसिकली लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप का फिल्टर करना है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई द फिल्टर ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। देन कम्स द एक्चुअल मार्केट कैप, कि अगर आपको मार्केट कैप को जो एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू है, इफ यू वांट टू फिल्टर आउट ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू मार्केट कैप, कि आपको इफ यू वांट टू फिल्टर आउट स्टॉक्स ओनली अबव 10,000 करोड़ एंड अबव, और इफ यू वांट टू फिल्टर आउट स्टॉक्स बिलो 100 करोड़, राइट, तो उसके बेसिस पे फिल्टर कर सकते हो। एंड देन हियर कम्स द सेक्टर। फॉर एग्जांपल दिस फिल्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी को सेक्टोरल प्ले करना है, कि सेक्टर के बेसिस पे अपना फंड्स एलोकेट करना है, या सेक्टर के बेसिस पे समवन फील्स की कल ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा चलेगा, देन दे कैन फिल्टर आउट ऑटोमोबाइल सेक्टर फ्रॉम दिस सेक्शन, एंड अकॉर्डिंगली द आउटपुट विल गेट फिल्टर्ड, राइट? एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि हो सकता है कि बहुतों को नहीं पता हो, यहाँ पे आप मल्टीपल फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप अपने लार्ज कैप, मिड कैप दोनों सिलेक्ट कर दिया, आपने मार्केट कैप के अंदर 100 करोड़ वो फिल्टर कर दिया, देन आपने प्राइस के अंदर भी मल्टीपल फिल्टर अप्लाई कर दिया। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स एंड यू कैन रिड्यूस द लिस्ट एज मच एज यू वांट, एज पर योर ओन कन्वीनियंस एंड डिजायर, कि आपको जितना लिस्ट चाहिए एंड आपको जिस टाइप के स्टॉक चाहिए, आप उसको टू दी एक्सटेंट, टू दी कोर एक्सटेंट तक आप फिल्टर कर सकते हो, ठीक है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द फिल्टर्स। अब आते हैं डाउनलोड बटन पे। सो बेसिकली आप जब इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे, सो व्हाट विल हैपन इज कि आपका ये जो एंटायर लिस्ट है, जो भी प्री सेट फिल्टर्स लगाए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 4 फिल्टर लगा के रखा है, तो 4 फिल्टर के बाद व्हेन यू क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन, देन द एंटायर आउटपुट विल गेट डाउनलोडेड इन अ सीएसवी फॉर्मेट, इन विच यू कैन डू योर फर्दर एनालिसिस, बिकॉज मेनी पीपल आउट देयर जो लोग एक्सेल में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, वो लोग एक्सेल में अपना फर्दर कैलकुलेशंस एंड फर्दर एनालिसिस करते हैं। सो फॉर देम एवरी स्कैन आउटपुट इज डाउनलोडेबल, एंड अगर आपको ट्रैक भी रखना है तो आप ट्रैक भी रख सकते हो अब एक्सेल में डाउनलोड करके, ठीक है? अब अब हम लोग आते हैं आउटपुट के ऊपर। एक और फीचर है स्कैन्स का, जो मैं इसके आउटपुट को एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगा। सो फॉर एग्जाम्पल क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई का मतलब क्या हुआ? क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई का मतलब हुआ, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, कि कोई भी स्टॉक जो अपने लास्ट वीक की हाई को नीचे से क्रॉस करके ऊपर में क्लोजिंग दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है? इस स्टॉक का लास्ट वीक का जो हाई था दैट वाज 2131.95। सो एक बार स्टॉक के अंदर जाते हैं हम लोग। तो ये मेरा 1 मंथ का चार्ट है, ये कल का चार्ट था, एंड इस स्टॉक का हाई है 2131, राइट? So this is the last week's high, 2131.95, 3rd July, एग्जैक्टली लास्ट वेडनेसडे का। सो कल स्टॉक ने क्या किया? इस स्टॉक ने ऑब्वियसली ट्यूसडे को, मैं पहले आप लोग को बता दूं कि स्टॉकेज इज एन ईओडी प्लेटफॉर्म, एंड ये जितनी भी स्कैन है ये सब ईओडी पे प्रोसेस होते हैं, दैट इज एंड ऑफ डे। सो ये जो आप लोग डेटा देख रहे थे, डेटा विच यू आर सीइंग नाउ इज द डेटा एज ऑन येस्टरडेज मार्केट सेशन, दैट इज 9 जुलाई, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। टुडेज डेटा विल बी प्रोसेस्ड अराउंड 7:30 to 8, एंड यू ऑल विल रिसीव द नोटिफिकेशन दैट स्टॉकेज एंड ऑफ डे डेटा अलर्ट्स एंड हैविंग प्रोसेस्ड। सो ये रहा बॉम्बे बुरमा का स्टॉक। तो ये कल का स्कैन है जब स्टॉक ने कल इस स्कैन में क्वालिफाई किया। तो एज यू कैन सी इज कि मंडे को इस ये स्टॉक लास्ट वीक हाई के नीचे क्लोज हुआ था, एंड कल इस स्टॉक ने लास्ट वीक हाई के नीचे से क्रॉस करके कल ऊपर में क्लोजिंग दिया, विच विथ अ वेरी वेरी लॉन्ग बुलिश कैंडल। सो व्हाट डज इट इम्प्लाई दैट, कि इस स्टॉक ने इस करंट वीक के अंदर एक ब्रेकआउट दिया है विथ रेस्पेक्ट टू लास्ट वीक लेवल्स। सो जब तक
दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जब तक अगर ये स्टॉक अपने इस स्कैंडल के लो को नहीं तोड़ता है, तब तक ये स्टॉक इस करंट वीक में या इन द फॉलोइंग वीक इट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है। सो नॉर्मली आज आप देखोगे कि आज मार्केट्स एक्चुअली करेक्ट किए थे इन द मॉर्निंग सेशन। तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी सिनेरियो कि आज कल जिस भी स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छी मूवमेंट आई थी, उन सबके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आया होगा। राइट। बेसिकली क्या होता है कि देयर कैन बी टू पॉसिबल सिनेरियोज। अगर कोई स्टॉक बहुत अच्छा भाग रही है, तो उसका जो नेक्स्ट पॉसिबल टू सिनेरियोज होगा वो यही दो हो सकता है कि या तो वो स्टॉक कंटिन्यू करेगी मोमेंटम में भागना, एंड और या वो स्टॉक नीचे गिर जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। तो अगर कभी भी अगर नेक्स्ट डे जब फॉलोइंग मार्केट में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, दैट इज बुलिश मोमेंटम है, तो हो सकता है कि वो स्टॉक्स और ऊपर जाए। बट अगर मार्केट ही वीक है, देन देयर आर वेरी हाई पॉसिबिलिटी सिनेरियोज कि एक दिन की अच्छी रैली के बाद हो सकता है उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आए। तो हेयर कम्स दी जुलियन इंग्रेविया का एग्जांपल। तो यहाँ पे भी इफ यू सी कि इस स्टॉक ने 4 जुलाई का जो हाई था उसको क्रॉस किया एंड उसके ऊपर कल का क्लोजिंग दिया। बट अगर आप देखोगे आज भी स्टॉक के अंदर सेलिंग आई, बट ये स्टॉक रिकवर्ड फ्रॉम दिस डेज लो एंड इसने ऊपर में बंद किया। राइट। सो बेसिकली दिस स्कैन्स के थ्रू आपको क्या पता चलता है कि विद द हेल्प ऑफ these scans you can identify and you can interpret that which are the stocks that are strong on the current bullish level, on the current week level। ठीक है। तो उस करंट वीक के लेवल पे आप उसमें अपना छोटा ट्रेड है, छोटा स्विंग ट्रेड है, जैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है। सो दिस स्कैन इज फॉर दैट। सो मैं आप लोग एक चीज बताता हूँ कि आप लोग कभी भी किसी स्कैन में ट्रेड कर रहे हो या किसी स्कैन के डेटा को फिल्टर कर रहे हो, देन उस स्कैन का मतलब आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग वन डे ब्रेकआउट या वीकली ब्रेकआउट स्कैन्स ले रहे हो एंड उसमें अंदर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एंड हो सकता है उस स्टॉक के अंदर नीचे गिर जाए, राइट। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आप लोग जो स्कैन्स के आउटपुट को देख रहे हो, आप लोग उस स्कैन्स के बेसिस पे ही उस स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। So this was all about the output. अब here comes the best part of the scans module, that is this। ये जो आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है, this is the past historical data of this respective scan। So like I said कि इतने सारे 450 प्लस स्कैन्स है, राइट। तो आप लोग हर एक स्कैन को तो नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल, और हम लोग भी सारे 450 स्कैन को ट्रैक नहीं रह सकते। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप जब भी किसी स्कैन में जाओ एंड इफ यू वांट टू चेक कि हाउ दैट स्कैन इज परफॉर्मिंग, राइट, फॉर एग्जांपल दिस स्कैन ओनली, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो एंड बैक टेस्ट दैट स्कैन कि वो स्कैन की जो आउटपुट आ रही है वो अगले दिन मार्केट्स में कैसा परफॉर्म कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली यू विल हैव टू कीप इन चेक कि जो मार्केट है नेक्स्ट डे वो कैसा मार्केट था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 जुलाई को टैप करूँ, ठीक है, तो 1 जुलाई को गोदरेज एग्रोवेट आई थी इस स्टॉक के अंदर। तो अगर हम लोग ये चेक करें कि गोदरेज एग्रोवेट उस दिन के बाद से कैसा परफॉर्म की है, सो दिस वाज 1 जुलाई। सो एज वी कैन सी कि 1 जुलाई के बाद 2 जुलाई को भी इस स्टॉक के अंदर कंटिन्यूड बाइंग आई थी, राइट, कंटिन्यूड मोमेंटम था। एंड देन उस स्टॉक के बाद देन दिस स्टॉक इज इन अ कंसोलिडेटिंग जोन, बट स्टिल दिस स्टॉक हैज नॉट, दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव दैट डेज क्लोज। तो अभी भी ये स्टॉक बुलिश है एंड स्टॉक में भी पैसा बना ही है, जिन में लोगों ने नेक्स्ट डे इसके अंदर एक बाइंग ली होगी। राइट। अगर मैं महानगर गैस देखूं, 1 जुलाई, सेम सेम सिनारियो। ओके, दिस इज द 1 जुलाई। तो इस दिन भी आप देखोगे कि उस स्टॉक के बाद नेक्स्ट डे एक कंटिन्यूड बाइंग आई थी, फिर एक सेलिंग आ गई, एंड देन वो स्टॉक अभी भी उसी जोन में ट्रेड कर रहा है, बट अभी तक ये स्टॉक उस दिन के लोगों को अभी तक अपना क्रॉस नहीं किया है। राइट। से फॉर एग्जांपल गार्डन शिप बिल्डर्स। सो दिस इज द 1 जुलाई। 1 जुलाई को ये स्टॉक आया स्कैन के अंदर, 2 जुलाई के अंदर एक मूवमेंट थी, 3 जुलाई को मूवमेंट थी, 4 जुलाई को मूवमेंट थी, 5 जुलाई को मूवमेंट थी। सो यू कैन सी कि एक अच्छा खासा मूव आया है इन दी कमिंग फॉलोइंग डेज आफ्टर द आफ्टर दिस स्टॉक वाज क्वालिफाइड। सो ऐसी करके आप बाकी डेज पे जाके भी व्हाट यू कैन डू अ क्रॉस चेक, यू कैन डू अ बैक टेस्टिंग कि ये स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड इवेंचुअली इफ यू फाइंड आउट एनी ऑफ दी स्कैन्स की जिसमें जो आउटपुट आ रहे हैं वो आपके एज पर डिजायरेबल एंड एज पर दी expectation of that respective scan अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, then obviously you can keep a track of those respective scans। फॉर एग्जांपल अगर मैं जेके पेपर का बात करूँ, तो जेके पेपर वाज क्वालिफाइड ऑन सेकंड। तो इसके अंदर आप ये चेक कर सकते हो कि उस दिन काफी अच्छी लंबी बुलिश कैंडल बन गई और उसके बाद से स्टॉक में सेलिंग ही आ रही है। तो ऑब्वियसली इस स्टॉक के अंदर ट्रेड या कोई स्विंग पोजीशन नहीं बनता था। ऑब्वियसली अगर कोई स्टॉक भी आज क्वालिफाई कर रहा है किसी स्कैन के अंदर, देन यू नीड टू चेक कि कल ऑन दी फॉलोइंग डे वो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, कंटिन्यूड मोमेंटम आ रहा है, राइट। बिकॉज कई बार होता है कि में मिनी स्टॉक्स परफॉर्म नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स बट बेसिस ऑफ सम की इवेंट्स, जैसे किसी स्टॉक में कोई न्यूज आ गई या कोई एक मेजर अपडेट आ गया या कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ गया, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल
कि आप जो भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो एंड जिस भी स्कैन के थ्रू ट्रेड कर रहे हो, दैट सपोर्ट्स योर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी एंड इट हेल्प्स यू टू मेंटेन योर ओन स्ट्रैटेजी एंड योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी स्कैन्स। सो अब हम लोग और बाकी स्कैन्स की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मंथली ब्रेकआउट, 52 वीक ब्रेकआउट, आपने कई बार सुना होगा, 2 ईयर, 5 ईयर ऑल टाइम ब्रेकआउट, हम लोग ऑल टाइम ब्रेकआउट स्कैन समझते हैं। सो क्लोज क्रॉसिंग ऑल टाइम हाई। सो व्हाट डज इट टेल्स अस कि दिस स्कैन विल फिल्टर आउट दो स्टॉक्स जिन्होंने अपना एक प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था उसको क्रॉस करके उस स्टॉक्स ने अपना क्लोजिंग दिया है। फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे मुर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इस स्टॉक का जो लास्ट ऑल टाइम हाई था दैट वाज 2167.70, कल स्टॉक ने 2379 का क्लोजिंग दिया। विच मीन्स कि कल ऑब्वियसली स्टॉक ने एक नया अपना ऑल टाइम हाई बनाया होगा। ऑब्वियसली उस पर क्लोजिंग आएगी नहीं है, दैट इज अ समथिंग, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट इन सारे स्टॉक्स ने अपने लास्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो ऑल दी स्टॉक्स हैव गिवन अ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना कि रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो इन सब में अटक जाते हैं कि वेन एवर दे आर ट्रेडिंग ऑन टू दी ब्रेकआउट स्टॉक्स, कि अगर किसी स्टॉक ने अपना 6 मंथ का ब्रेकआउट दिया या 1 ईयर 52 वीक हाई ब्रेकआउट दिया या ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया, तो उसके अंदर क्या होता है कि कई रिटेल इन्वेस्टर्स अटक जाते हैं बिकॉज दे एंड अप बाइंग एट हायर लेवल्स, एंड उसके बाद क्या होती है, उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आप जब ब्रेकआउट स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो स्टॉक काफी एक अच्छा मूवमेंट होने के बाद, राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अगर ट्रेड करोगे तो आप बेटर एंट्री ले पाओगे एंड आपका एग्जिट भी अकॉर्डिंगली होगा। सो मैं आप लोग को देता हूँ कि अगर आप लोग कभी भी किसी भी ब्रेकआउट स्टॉक पे ट्रेड करो, फॉर एग्जांपल 52 वीक ब्रेकआउट या 2 ईयर ब्रेकआउट या ऑल टाइम ब्रेकआउट, तो अभी क्या होता है कि अभी मार्केट बुलिश है, सो यू विल सी कि देयर आर मेनी स्टॉक जो हर दूसरे दिन अपने एक नया ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, या हर दूसरे दिन वो एक 52 वीक ऑल टाइम 52 वीक ब्रेकआउट दे रहे हैं। सो उन केसेस में क्या होता है, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि वो स्टॉक और ऊपर कितना जाएगी, राइट, और कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, और अपसाइड पोटेंशियल कितना है। सो उन केसेस में क्या होता है कि आपका रिस्क बहुत हाई रहता है एंड रिवॉर्ड बहुत कमती रहता है। ठीक है, तो आप लोग कभी भी अगर ब्रेकआउट स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहे हो ना, देन इसको आप लोग एक टिप या एक एडवाइस की तरह रख सकते हो कि जब भी कोई स्टॉक काफी टाइम बाद कोई ब्रेकआउट देता है ना, फॉर एग्जाम्पल, दो देर आर टू स्टॉक्स, जो स्टॉक ने अपना 4 दिन पहले एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था एंड आज उस स्टॉक ने वापस एक नया ऑल टाइम हाई बना लिया। ठीक है, तो 4 दिन के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई बना लिया। ऑब्वियसली हो सकता है कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड कंटिन्यूड मोमेंटम है, हाँ, और अपसेट पोटेंशियल हो, बट आपके केस में क्या होगा कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो बहुत खराब होगा। एंड वही एक दूसरा स्टॉक है जो आज एक नया ऑल ब्रेकआउट बना रहा है, समझिए 6 महीना बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद। ठीक है, तो जितना हायर ड्यूरेशन लगता है ना किसी स्टॉक को, बेसिकली 2 साल तक वो रेजिस्ट कर रहा था अपने एक नए ब्रेकआउट को बनाने में, तो जब वो जितने लॉन्गर ड्यूरेशन के बाद एक नया ब्रेकआउट देगा ना, तो उन स्टॉक्स के अंदर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो काफी ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, उसमें आपके पास काफी ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल होगी रादर देन वो स्टॉक जो हर दूसरे तीसरे दिन एक नया हाई बना दे। ठीक है, तो आप लोग ये चीज को याद रखो। अब आप लोग को अगर ये मैं आप लोग को बताऊं कि आप लोग कैसे ये प्री आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किन स्टॉक्स के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई लग सकता है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे सकते हैं या 52 वीक हाई ब्रेकआउट दे सकते हैं। सो उन केसेस में आपको क्या करना है, आपको इन स्कैन पे जाना है, दैट इज क्लोज विद इन ऑल टाइम हाई जोन और क्लोज एंटरिंग ऑल टाइम हाई जोन। तो बेसिकली आप जितने भी मैंने आपको प्राइस स्कैन के अंदर ब्रेकआउट स्कैन दिखाए, 52 वीक ब्रेकआउट, 2 ईयर ब्रेकआउट, 5 ईयर ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि हम लोग इन सबके अंदर हर स्कैन के अंदर एक जोन का हम लोग ने फिल्टर लगा के रखा है। तो व्हाट इज दिस जोन? तो वी हैव डिफाइंड दिस जोन एज 15%। सो बेसिकली अगर किसी स्टॉक का ऑल टाइम हाई इज 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, सो उसका जो 15% जोन हो जाएगा दैट विल बी 86 to 100, दैट विल बी 85 to 100। ठीक है, सो एज सून एज दैट स्टॉक क्रॉसेज अबव 85, बेसिकली वो स्टॉक कल तक 84 ट्रेड कर रहा था, 83 ट्रेड कर रहा था, एंड आज उस स्टॉक ने 85 के ऊपर का क्लोजिंग दे दिया, विच मीन्स कि दिस स्टॉक हैज एंटर्ड इनटू इट्स ऑल टाइम हाई जोन, राइट। सो ऑब्वियसली अगर मैं आप लोग को ये 6 एग्जांपल दूं, तो ये जो 6 स्टॉक्स आप देख रहे हो सामने में, व्हाट यू विल सी इज कि ये वो सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने एक नए जो अपने पुराने ऑल टाइम हाई जोन के अंदर एक एंट्री दे चुके हैं, which means कि these 6 players are the probable candidates or are the probable stocks that can give a new all-time high breakout। ठीक है, सो आपको ऑब्वियसली इस इन स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना है कि किन स्टॉक्स के अंदर बेटर चांसेस है। तो उससे क्या होगा ना, अगर आप पहले से किसी स्टॉक को प्री आइडेंटिफाई कर लेते हो,
कि हाँ दिस स्टॉक इज केपेबल ऑफ गिविंग मी अ न्यू ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एंटर एट लोअर लेवल ओनली, यू कैन एंटर विद इन दिस जोन ओनली जैसे ही आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है. सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप जब इस जोन के अंदर ही एंटर कर लोगे किसी स्टॉक के अंदर, या आप इसको पहले से प्रीएम्प्ट करके आइडेंटिफाई करके रखोगे, सो बेटर लेवल्स पे एंट्री ले पाओगे, एंड ऊपर जाके यू विल बी एबल टू एग्जिट. राइट, तो आपका जो रिस्क वो बेटर होगा रादर देन एंटरिंग एट आफ्टर दिस. आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड आपको ज्यादा बेटर डिसाइड करना है. राइट, कि आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स के अंदर कितना ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल है, क्या है, नहीं है. राइट, तो उसके बेसिस पे आप ट्रैक रख सकते हो. तो इस क्लोज विद इन ऑल टाइम हाई जोन इज कि जो स्टॉक्स अपने इस 15% जोन में ही ट्रेड कर रहे हैं. राइट, 15% जोन में ही क्लोज कर रहे हैं. तो बेसिकली उससे आपको क्या है, ये जो गैप फ्रॉम ऑल टाइम हाई है ना, जो उस कैन में भी था, ये आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टॉक्स है और उनको वो अपने ऑल टाइम हाई से कितने दूर है. हाउ मच ड्यूरेशन दे हैव फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाइज. तो ऐसे करके वी हैव अदर स्कैन्स, 1 डे बिहेवियर, 2 डे, 3 डे बिहेवियर, रेटिव परफॉर्मेंस स्कैन्स, रेटिव स्ट्रेंथ स्कैन्स. तो मैं इस स्कैन्स के बारे में आप लोगों को बताता हूँ. सो व्हाट इज दिस रेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज? सो बेसिकली दिस इज एन आरएस इंडिकेटर जो स्टॉक का अपने जो इंडेक्स है, दैट इज बेंचमार्क इंडेक्स एंड सेक्टोरल इंडेक्स, उसमें 55 डेज के अंदर रिलेशन चेक करता है कि हाउ दिस स्टॉक हैज परफॉर्म इन द लास्ट 55 डेज विजाविज देयर बेंचमार्क और सेक्टोरल इंडेक्स. सो बेसिकली आप लोग अगर कोई भी विवेक सर को फॉलो करते हो या उनकी आप लोग ने यूट्यूब वीडियो देखी है, इफ यू गाइस हैव वॉच्ड यूट्यूब वीडियोस और स्टॉक social posts, then you must have heard about and seen this RS55 और RS market model. So उनका खुद का एक RS55 days and RSI का मॉडल है, which he is a strong believer in it. And let me tell you, ये जो RS55 days का जो कॉन्सेप्ट है, ये उन्हीं का ही बनाया हुआ है, एंड ही स्ट्रांगली यूजेस इट इन ऑल हिज स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट पोजीशंस. एंड वो अपने इस RS55 डेज मॉडल, RSI के मॉडल पे अपना एंट्री एग्जिट काफी हद तक प्लान करते हैं. अगर आपको उनके मॉडल के बारे में जानना है, देन यू कैन गो एंड फॉलो हिम ऑन स्टॉक सोशल, और यू कैन गो एंड चेक आउट हिज यूट्यूब वीडियोस ऑल्सो. उसमें भी आपको कई सारे, आपको आप जब देखोगे तो उनके हर एक मॉडल में आप वो कोई भी चार्ट भी पोस्ट करते हैं अगर, तो हर चार्ट के अंदर भी इस RS55 डेज का प्लॉटिंग किया हुआ है. तो इट विल हेल्प यू अ लॉट. फॉर एग्जाम्पल, रिलेटिव स्ट्रेंथ गोइंग अबव जीरो, तो ये वो सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने कल एक मूव देने के बाद दे हैव कम इन द आउट परफॉर्मेंस जोन. दैट इज जैसे ही RS जीरो के ऊपर जाएगा, विच मींस कि दीज आर द स्टॉक्स दैट हैव स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50. राइट, देयर बेंचमार्क इंडेक्स. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं AI इंजीनियरिंग को देखूं, सो इस स्टॉक में जो अब मूवमेंट दिया है, ये स्टॉक अभी अपने आउट परफॉर्मेंस जोन के अंदर है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल KRBL, ये सारे के सारे स्टॉक्स वही है जो अभी आउट परफॉर्मेंस जोन में है विद रिस्पेक्ट टू देयर बेंचमार्क इंडेक्स. फिर आ जाता है ARS से सारा स्कैन, एब्सोल्यूट रिटर्न स्कैन्स, VWAP स्कैन्स. अभी हो गया प्राइस एक्शन खत्म. अब हम लोग आते हैं वॉल्यूम एंड डिलीवरी पे, दैट इज सप्लाई एंड डिमांड. वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स पकड़ते हैं. सो लेट मी टेल यू कि हम लोग पे डेली स्कैन्स भी है, वीकली स्कैन्स भी है, मंथली स्कैन्स भी है, एंड ऑल आर कैलेंडर बेस्ड स्कैन्स. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हाई ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी दिस वीक. सो दीज आर दी स्कैन जिसके अंदर सबसे ज्यादा सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट आया है. दैट इज फॉर एग्जांपल, आप लोग विजय डायग्नोस्टिक सेंटर देखोगे, तो इस वीक के अंदर, दैट वाज ओनली मंडे एंड ट्यूसडे, सिर्फ 2 दिन के अंदर इस स्टॉक के अंदर अपने प्रीवियस 5 वीक के एवरेज डिलीवरी, आप जब भी देखोगे एवरेज डिलीवरी के अंदर 5 पीरियड लिया गया है. इट इज इधर 5 डेज और 5 वीक्स और 5 मंथ्स. So what you will see is that कि सिर्फ 2 दिन के अंदर, दैट इज मंडे एंड ट्यूसडे, 2 दिन इस वीक के अंदर विजय डायग्नोस्टिक सेंटर में देयर हैज बीन अ 6x ग्रोथ, 6x times more delivery of this stock, and there has been a 3.8x growth in the traded quantity. तो ये स्टॉक्स आप देख सकते हो कि लास्ट वीक के नाम ऑलरेडी 3.7% ऊपर है. सेम गोज विद जुबिलेंट इंग्रेविया, 10% ऊपर है लास्ट वीक के नाम, एंड 2x 7.4x इंक्रीज हुआ. तो इस स्कैन के थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जिनके अंदर हाई वोलाटिलिटी है, जिसके अंदर देयर आर ह्यूज नंबर्स ऑफ डिलीवरी एंड वॉल्यूम गोइंग ऑन. तो उसके बेसिस पे भी आप ट्रैक रख सकते हो कि विच आर दी स्टॉक्स दैट आर बीइंग traded or being bought for delivery by the market. ठीक है, अब हम लोग आते हैं टेक्निकल स्कैन्स पे. सो मार्केट में देयर आर एन नंबर ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स अवेलेबल. राइट, हर कोई अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करता है, हर कोई अलग अलग इंडिकेटर यूज करता है, बट कहीं ना कहीं हर एक इंडिकेटर विल टेल यू द सेम थिंग, दैट दिस स्टॉक इज इधर बुलिश और बेयरिश
सूनर और लेटर कोई स्कैन आपको, कोई इंडिकेटर आपको आज सिग्नल देगा, कोई इंडिकेटर आपको 4 दिन बाद देगा, राइट। तो हर स्कैन बेसिकली क्या हो रहा है, आज जितनी भी टेक्निकल इंडिकेटर्स वो सारी की सारी प्राइस डेटा पे बेस्ड है, राइट। सबका अपना अलग अलग फॉर्मूला है। सो यू आप लोगों को किसी को भी, यू डोंट नीड टू मास्टर ऑल ऑफ देम, यू जस्ट नीड टू पिक सम ऑफ द गुड इंडिकेटर्स दैट यू फील दैट दैट यू आर एबल टू को रिलेट, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आप उस इंडिकेटर की मूवमेंट को समझ सकते हो एंड उसकी बेसिस आप उसको स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हो। सो दैट विल हेल्प यू ऑल आउट। ठीक है। सो हम लोग समझते हैं एसएमए। सो बेसिकली व्हाट इज एसएमए? जिन लोगों को नहीं पता है, सिंपल मूविंग एवरेजेस की अगर मैं एसएमए 20 की बात कर रहा हूँ, तो लास्ट 20 डेज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका एवरेज है। सो बेसिकली हम लोग जब एसएमए को चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो हर डे 20 डेज का एसएमए डे बाई डे प्लॉट होता रहता है। ठीक है। तो आपको सिर्फ 20 डेज का ट्रेंड समझ में आता है कि 20 डेज का ट्रेंड अपसाइड है, बुलिश है कि बेरिश है, 50 डेज का ट्रेंड अपसाइड है कि बुलिश है। तो इसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू एसएमएस अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टॉक्स। तो एसएमएस एंड ईएमएस के अंदर दो गोल्डन कॉन्सेप्ट्स है, दो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, दैट इज गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर। सो जब भी 50 एंड वी नेम इट एज 50 एसएमए क्रॉसिंग 200 एसएमए फ्रॉम बिलो, so this is termed as golden crossover, that is it is a bullish crossover. And 50 SMA crossing 200 SMA from above, that is ऊपर से काट रहा है, so this is the death crossover which means bearish crossover। तो मैं आप लोग को इसका एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चार्ट पे प्लॉट, ये चार्ट पे प्लॉट हो जाता है। यस, देयर इज सम नेटवर्क इशू, राइट। इट इज प्लॉटेड, राइट। सो इसके अंदर 200 एसएमए नहीं है। सो लेट मी चेक सम अदर स्टॉक, राइट। सो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि जो एसएमए 50 है, दिस इज द पिंक लाइन, एंड एसएमए 200 जो है ग्रीन लाइन। ठीक है। सो आप लोग ये कर रहे हो, ठीक है। सो कभी भी अगर कोई छोटा एसएमए या ईएमए का वैल्यू किसी बड़े एसएमए या ईएमए के वैल्यू को नीचे से क्रॉस कर रहा है, लाइक दिस, लाइक ओवर हियर दिस, तो इसको बुलिश माना जाता है। एंड कभी भी कोई छोटा एसएमए या ईएमए का वैल्यू किसी बड़े, दैट इज अ लॉन्गर एसएमए और ईएमए के वैल्यू को ऊपर से क्रॉस करे एट दिस लेवल, उसको बेरिश माना जाता है। सो व्हाट यू कैन सी इज, यू कैन सी एट दिस पॉइंट कि यहाँ पे एक बुलिश क्रॉस ओवर होता है, गोल्डन क्रॉस ओवर, जिसको बोलते हैं 50 एसएमए क्रॉसिंग 200 एसएमए फ्रॉम बिलो। यहाँ पे क्रॉस हुआ था एट दिस प्राइस, एट दैट टाइम इट वाज ट्रेडिंग एट 500 रुपीज। उसके बाद दिस स्टॉक हैज गिवन अ मैसिव रैली एंड दिस स्टॉक crossed given a death crossover at the price of 997, that is almost 100% return, right। so कितने टाइम पीरियड में आपको 100% रिटर्न मिला, फ्रॉम 23 टू 30 मार्च 2022। सो इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स। ठीक है। इसके बीच में भी इस स्टॉक ने हाई कितना का मारा, 1364, विच वॉज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5x। आपको 150% का रिटर्न मिला विद इन स्पैन ऑफ 1.5 साल, राइट। सो आपको, आप एसएमए स्कीम में, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और इफ यू आर अ पोजिशनल इन्वेस्टर, देन ऑब्वियसली ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ एसएमएस एंड ईएमएस विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो आपको खाली एसएमएस और ईएमएस के बेसिस पे आपको सिग्नल्स मिलते रहेंगे कि कब एंट्री एग्जिट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एंट्री हुआ, सो एट दैट टाइम ये स्टॉक रैली दिया, फिर एट दिस लेवल किया, एट द लोअर लेवल फिर स्टॉक ने एक यहाँ पे एंट्री दिया, बट दिस एंट्री वाज नॉट एज गुड एज इट शुड बी, राइट। फिर स्टॉक ने फिर वापस एक सिग्नल दिया एग्जिट, तो एट दैट टाइम बेसिकली दिस स्टॉक वाज इन अ कंसोलिडेटिंग जोन। फिर स्टॉक ने यहाँ पे एक एंट्री दिया एट दिस पॉइंट, तो उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा खासा एक छोटा सा एक अपवर्ड रैली दिया फ्रॉम 1251 टू 1461, दैट इज अप्रोक्स 10%। एंड फिर उसके बाद स्टॉक ने वापस एक सेल सिग्नल दिया एंड अब ये स्टॉक वापस से जाके एक गोल्डन क्रॉसओवर दे रहा है, राइट। सो बेसिकली आप लोगों ने क्या समझा इसके थ्रू, कि आपको कभी भी एसएमए या ईएमएस को ट्रैक रख रहे, सो यू नीड टू ट्रैक ऑन द क्रॉस ओवर, कि कभी भी आप लोग जिस भी एसएमए या ईएमए को ट्रैक रख रहे हो, उसका किसी दूसरा एसएमए या ईएमए के साथ क्रॉस ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या प्राइस वैल्यू के साथ क्रॉस ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस भी एसएमए या ईएमए को क्रॉस ओवर करने से भी वो काफी सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। सो इसी के थ्रू आपको गोल्डन एंड डेथ दोनों समझ में आ गया होगा।
सो दिस वाज ऑल अबाउट द एसएम एंड ईएमए। देन फिर आप काफी सारे स्कैन है, लाइक वी हैव आरएसआई स्कैन, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि विवेक सर का अपना खुद का एक आरएस इंडिकेटर एंड आरएसआई का मॉडल है। सो दिस कैंट आपको उस स्टॉक से मोमेंटम के बारे में बताएगा कि कौन सा स्टॉक्स बुलिश है अभी, कौन सा स्टॉक्स अभी अप ट्रेंड में है, कौन से स्टॉक्स ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन में। सो यू कैन ट्रैक द मोमेंटम्स ऑफ दोस ऑफ स्टॉक्स। देन इन द रिसेंट रिलीजेस हम लोग ने वीकली आरएसआई, वीकली पैराबोलिक सार एंड वीकली सुपर ट्रेंड भी लॉन्च किया है। सो बेसिकली दीज स्कैन्स आर मोर फॉर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन, दैट इज कि योर पोजिशनल ट्रेड्स 1 to 2 year ट्रेड्स, क्योंकि आपको जब आप लॉन्गर टाइम फ्रेम्स के लेवल्स को देख रहे हो तो आपको लॉन्गर टाइम के उसको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, राइट। अब और आ जाते हैं अगर हम लोग पैराबोलिक सार, वी हैव सुपर ट्रेंड स्कैन्स। तो सुपर ट्रेंड स्कैन्स के अंदर क्या होता है कि सुपर ट्रेंड स्कैन इज अ ट्रेंड रिवर्सल स्कैन। सो बेसिकली कब बाई से सेल हो रहा है, सेल से बाई हो रहा है, यू विल गेट टू नो फ्रॉम द सुपर ट्रेंड स्कैन। सो दिस इज वन ऑफ द स्कैन जो आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। सुपर ट्रेंड सिग्नल चेंज टू बाई। सो आप इसमें भी जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, जो ऑल टाइम रिकॉर्ड के बेसिस पे कोई भी स्टॉक अगर बहुत ऑब्वियसली कोई स्टॉक है जो 1-2 दिन के अंदर बाय सेल सिग्नल दे रहा है, तो उसके अंदर कम ही भरोसा आपका होगा। बट कोई स्टॉक है जो काफी टाइम बाद बाई सिग्नल दे रहा है या काफी टाइम बाद सेल सिग्नल दे रहा है, सो ऑब्वियसली वी इट इज मोर अज्यूम कि उसके अंदर एक बेटर सिग्नल जनरेट हुआ एंड इट विल फॉलो दैट रेस्पेक्टिव रैली। सो एमआरएफ स्टॉक को देख के कोई सेंस नहीं है। हम लोग चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ट्रैक रखते हैं, राइट। सो आप लोगों को मैं इसमें 1 ईयर का चार्ट्स पे दिखाता हूँ कि हाउ डज इट दिस वर्क। सो बेसिकली आप लोग जब ये रेड लाइन देख रहे हो, सो दिस इज द सेल सिग्नल जनरेटेड। सो एज सून एज दिस रेड लाइन comes below the prices and turns into green, then at this point a buy signal is generated. So basically on 28th August 2023, at the level of 386 a buy signal was generated, and उसके बाद आप देख सकते हो कि ये स्टॉक कहाँ ऊपर तक गया है। सो एट दिस पॉइंट अ रिवर्स सेल सिग्नल was generated when जब ये जो लाल लाइन था ये प्राइसेस के ऊपर चला गया। सो एट व्हाट वाज द प्राइस एट दिस, इट वाज 848। तो आपको अराउंड अराउंड आपको 3x मिल गया। अराउंड अराउंड अब ये स्टॉक मोर देन 300% रिटर्न दिया विद इन नॉट मोर देन 1 ईयर। फिर आप देख सकते हो कि वापस एक बाई सिग्नल आया, बट वो इतना लंबा सस्टेन नहीं कर पाया, राइट। फिर एक सेल सिग्नल आया विच वॉज वेरी शॉर्ट, देन फिर एक बाई सिग्नल आया। तो उसमें आप देख रहे हो कि काफी टाइम से ये जो स्टॉक है वो कंसोलिडेटिंग फेज में है, इसलिए इसमें बाई सेल सिग्नल बनते जा रहा है। बट एज यू सी कि एक ये अच्छा टाइम ड्यूरेशन हुआ जिसके बाद इस स्टॉक ने वापस से बाई सिग्नल जनरेट किया है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रैक एंड ट्रेड दी ट्रेंड रिवर्सल्स। अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल्स को कैच करना है कि कब कोई स्टॉक बुलिश से बेरिश जा रहा है, बेरिश से बुलिश जा रहा है, देन दीज आर द परफेक्ट स्कैन्स। आपको अगर और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे चाहिए, देन यू कैन ट्रैक द वीकली सुपर ट्रेंड स्कैन्स, जैसे फॉर एग्जांपल मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि हाँ ये स्टॉक अभी बुलिश लेवल्स पे जाया है, तो अब इस स्टॉक के अंदर और फर्दर मोमेंटम आ सकती है। सो हम लोग के पास ऑब्वियसली यहाँ पे कई सारे इंडिकेटर्स है, बट इफ यू स्टिल फील कि ऐसे कोई भी इंडिकेटर है, इफ देयर इज एनी इंडिकेटर एनी स्कैन that you feel that is missing from out from over here, then you can surely request us. You can surely reach out to our support team with your request, and we'll surely look into it if we can incorporate in the near future. Then we have fundamental scans. So fundamental scans के अंदर भी, like I said, we have covered all of the categories: profitability category, turnover, solvency। तो आप लोग जब प्रॉफिटेबिलिटी में होगे, यू विल फाइंड ऑल दी स्कैन्स: हाई आरओई, इंप्रूव्ड आरओई, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंप्रूव्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग क्वार्टरली ईपीएस। तो ऐसे कई कई सारे स्कैन्स हैं। हम लोग ने रिसेंटली वी हैव लॉन्च दिस 7 स्कैन्स, दैट इज हाईएस्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एनुअल नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट क्वार्टरली एबिटा, हाईएस्ट एनुअल एबिटा। तो व्हाट वी आर चेकिंग थ्रू इज कि which are the stocks that are operating at their highest levels of profit, or operating at their highest levels of revenue, or operating at the highest levels of operating profit in the past 10 years। तो आपको उससे ये समझ में आएगा कि which are the stocks जो एक्चुअली काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली इन द ग्रोथ फेज, एंड वो लोग हर साल एक नया हाइस बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑपरेशंस, ठीक है। देन वी हैव टर्नओवर स्कैन्स। टर्नओवर स्कैन्स आर ऑल अबाउट द सेल्स स्कैन्स कि कौन से स्टॉक्स के अंदर सेल्स ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंटली आर दी सेल्स गेटिंग इंक्रीज, हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स इन लास्ट 10 years, हाईएस्ट एनुअल सेल्स इन लास्ट 10 years। Then we have solvency scan. So this is all about the company's solvency, that is leverage part, कि कंपनी का डेट कितना ज्यादा है, कंपनी का डेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कि कौन से कंपनीज के अंदर आर दी कंपनीज केपेबल एनफ टू रिजॉल्व देयर डेट।
Then we have cash flow scans, or these all deals with the cash flow from operations of the company. Then we have valuation scans. Many people out there want to track or invest on the basis of PE. So आप यहाँ पे check कर सकते हो कि which are the stocks with high PE, or which are the stocks with very high PE, moderate PE, low PE, या which are the stocks जिसका PE industry PE के ऊपर है या below है. Then we have high PEG, low PEG ratios, price above book value, below book value, and everything. Then we have dividend scans. So there are many investors out there who only invest in dividend paying stocks, जो हर साल consistently अच्छा amount का dividends pay करते हैं. So you can track those stocks and you can identify those stocks from over here. Which are the stocks that are consistently paying dividend, have a positive dividend yield, and consistently pay high dividend payout ratio. Then we have efficiency scans. Then we have शेयर होल्डिंग स्कैम्स. सो बेसिकली अगर आपको शेयर होल्डिंग ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है कि विच आर दी स्टॉक्स जिनके अंदर प्रमोटर्स अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, या एफआईडीआई अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, या म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, देन यू कैन आइडेंटिफाई ऑल दो स्टॉक्स फ्रॉम दिस सेक्शन ओवर हियर. देन वी हैव प्रमोटर होल्डिंग प्लेस स्कैम्स, कॉर्पोरेट एक्टिविटी स्कैन्स, राइट. सो अब आ जाते हैं हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्कैन्स पे. सो बेसिकली फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट के अंदर ये है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसके अंदर फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, कौन से स्टॉक्स है जिसमें डिक्रीज हुआ है. देन वी हैव फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन स्कैन्स. तो बेसिकली हम लोग का एक एल्गोरिदम है जिसके बेसिस में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बन रहे हैं, एंड कौन से स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर के लॉन्ग पोजीशन डिविएट हो रहे हैं, एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बन रहे हैं. एंड सेम गोज फॉर द शॉर्ट पोजीशन स्कैन्स. देन वी हैव पुट कॉल रेशियो स्कैन्स. तो व्हाट इज पुट कॉल रेशियो? कि ऑप्शन में जो पुट कॉल होती है, कॉल एंड पुट, तो किसी भी स्टॉक का जो पुट और कॉल होता है उसका जो रेशियो होता है दैट इज पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल ओपन इंटरेस्ट. तो उसके बेसिस पे ये स्कैन्स है. देन वी हैव स्ट्राइक वाइज ऑप्शन स्कैन्स. इसमें इंडेक्स स्कैन्स और स्टॉक स्कैन्स है. इसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन से ऐसे स्ट्राइक्स है इंडेक्स के जिसके अंदर कॉल के अंदर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, या पुट के अंदर ओपन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है. सेम गोज फॉर स्टॉक्स एज वेल. देन वी हैव कैंडल स्टिक स्कैन्स. तो कैंडल स्टिक स्कैन्स अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो कैंडल स्टिक का जो एक पैटर्न होता है ना, वो कैंडल स्टिक एक जो पैटर्न, एक जो बॉडी बनाती है, आप जब चार्ट पे देखोगे तो हर कैंडल स्टिक का अपना एक स्टोरी है. कोई हैमर पैटर्न होता है, कोई बुलिश इंगल्फिंग होता है, कोई डोजी होता है. तो ईच एंड एवरी पैटर्न हैज देयर ओन रेजेम्बलेंस एंड इंटरप्रिटेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्टॉक में देख रहे हो कि किसी स्टॉक के अंदर एकदम लॉन्ग ग्रीन बॉडी कैंडल बन रहा है, ठीक है, तो इट इज अ वेरी क्लियर कट बुलिश कैंडल की, उन स्टॉक्स के अंदर बुलिश मोमेंटम आ सकता है. फॉर एग्जांपल एचएससीएल. एचएससीएल के अंदर आप देखोगे कि कल व्हाइट मारूफ बना था, एंड आज स्टॉक डिस्पाइट ऑफ द मार्केट सेलिंग, मार्केट में जो आज करेक्शन है, आज ये स्टॉक आज भी काफी अप ट्रेंड में ही रहा. द स्टॉक मेंटेन इट्स ग्रीन सिग्नल, राइट. तो इसके थ्रू आप अलग अलग पैटर्न्स के थ्रू भी आप ट्रैक रख सकते हो. एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर आल्सो अ क्लियर कट इंडिकेशन कि कौन से स्कैन्स के अंदर कंटिन्यू, कौन से स्टॉक्स के अंदर वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, या कौन से स्टॉक के अंदर रिवर्सल आ सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल बुलिश रिवर्सल. आप अगर बुलिश एंगल्फिंग देखोगे तो इसके अंदर आपको दिखेगा जैसे नोवामा. इसके अंदर अभी तक ये डाउन ट्रेंड था, एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना, एंड ये स्टॉक के अंदर अब एक अप ट्रेंड आ सकता है, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट दी स्कैन्स. अब हम लोग एक बार स्कैन्स को लेके एक बार वी हैंडल द Q&A सेशन, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू द क्रिएशन ऑफ माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स. ओके, मैं और कोशिश करूंगा कि मैं और हिंदी में बोलूं एंड मैं और थोड़ा धीरे जाऊं. श्रीनी नंजी, ऑल दीज आर एंड ऑफ डे स्कैन्स. ये सारे के सारे ईओडी पे प्रोसेस होते हैं आफ्टर द एक्सचेंज हैज पब्लिश देयर क्लोजिंग प्राइसेस फॉर द डे. प्रशांत गुप्ता जी, एनएससी स्टॉक मींस ऑल एनएससी स्टॉक्स, इसके अंदर एफएनओ स्टॉक्स भी आ जाएंगे. और प्रशांत जी, मैं आपको ये नहीं समझ पा रहा हूँ, नॉन नाइटी एफएनओ स्टॉक, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेरी? और लीना मोहन जी, रिगार्डिंग दी ऑल टाइम एंट्री एंड एग्जिट, व्हाट आई वाज सजेस्टिंग इज दैट कि इधर आप लोग अगर व्हाट यू कैन डू इज कि इधर यू कैन प्लान योर एंट्री एंड एग्जिट एंट्री आफ्टर अ स्टॉक हैज गिवन अ ब्रेकआउट, एंड यू नीड टू चेक that what is the upside potential after taking your entry. But if a stock is continuously making new all-time highs every other day, then the upside potential is very less. So what you can do is, with the help of those scans which I've explained, if you can pre-identify those stocks which can give a new all-time high or new all-time high breakout,
then what you can understand is you can entry at the entry, or you can make an entry before the stock has given all-time high breakout, and then accordingly you can exit when the stock gives a all-time breakout. So your risk to reward ratio will be very good, and it will be a very safe bet. Dr. D.K. Bhadwaj, sir, please note that all these indicators are cash only stocks only. अगर आपको उन stocks में से खाली FNO को, if you want to filter out, then you can only as the filter of NSE FNO, or the rest of the filters are cash only stocks only. Abhishek Vasnikar ji, can you please reach out to the support team with respect to your query, because it will take some time to explain your query, and with respect to you can ask the support team to reach with your query, and I will surely look into it. Okay, मैं there was some network issues in the between. I guess that was the reason behind the voice breaking. अनिल मालीवाल जी, ADX स्कैन के लिए you can please reach out. You can reach out to the support team, and I will properly explain the ADX scan in your mail. Sandeep Kunanji, in the importance of individual scans is it that each and every scan may not provide the same results, right? So, in some scans are qualifying in some of the indicators. So, what you will get to know is that you can filter out stocks from that. You can identify stocks on the basis of those respective filters. And like I said, you don't need to follow all the indicators all right together. You just need to rely on two or three indicators, and you can track accordingly. Uh, Balaji, no, currently we do not have open equals to low and high scans. We have taken your request as a request, and will surely look into it in the near future. Vivek Malpani ji, if you want to take date tomorrow, then you can follow the stockist trading strategies. उसके अंदर आपको one day bullish and one day bearish and काफी swing strategies मिलेंगी. And उसमें proper एक trading strategy explain भी किया हुआ है कि आपको trade कैसे लेना है, क्या risk reward रहेगा. You can check over there. अजम खान जी, yes, हम लोग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में आगे बढ़ेंगे. No, Balaji, we cannot change the indicator settings. Can you suggest this can give 100 per volume? Kuldeep, you can surely look into the volume and delivery daily scans, and over there you can just download the data and you can filter out the FNO stocks. Hari Ganeshi, if you manually search stock, then you will get to know that stock is a large cap, mid cap, or small cap inside the stocks overview section or the stocks prices section, where it is written clearly that stock is a large cap, mid cap, or small cap. Neckline is a candlestick pattern, so you can go inside the I section and you can read about it. For everyone who wants to reach out to the support team, you all can mail at the support@stockage.com. I've shared the email ID. You can mail your questions and queries at this mail, and we'll look into it. So now let's proceed. So now let's proceed with the combination scans. So basically, this is the PDF for Vivek sir's combination scan list. So there are multiple combination scans that Vivek sir has personally made it, and he strongly uses all these combination scans. That is superheroes, high on life stocks, or tiger stocks, power of RS, like I told you, RS India, RS and RSI, capex, which stocks are making capex plus earning plus price action, then FIPA, right? So currently, let's understand and make the FIPA scan.
and we'll understand how to create a combination scan and what are the points that to be noted. So for that, for creating a combination scan, what you need to do is you need to go to my stockage, and then you need to click on my combination scans. एंड यहाँ पे आके आपको एक, जैसे मैं ये पहले वाला फीपा बनाया हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. एंड फिर आपको यहाँ पे ऐड कॉम्बिनेशन स्कैन पे क्लिक करना है. एंड देन टू नेम योर रेस्पेक्टिव स्कैन. एंड ये आपका स्कैन क्रिएट हो गया. देन यू नीड टू क्लिक ऑन दिस फीपा स्कैन. तो बेसिकली आपका एक कॉम्बिनेशन स्कैन यहाँ पे क्रिएट हो गया फीफा. अब अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहला स्कैन है क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन. सो हम लोग ऐड स्कैन पे जाएंगे. एंड हम लोग प्राइस स्कैन पे, अगर आप लोग को पता है कि वो स्कैन कहाँ पे, देन यू कैन श्योरली यू कैन नेविगेट बाय योर सेल्फ क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन. और अगर आप लोग को नहीं पता है, देन यू कैन ऑल्सो सर्च. जैसे आप लोग यहाँ पे सर्च करिए इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी एंड इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये भी ऐड हो गया. देन वी हैव क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर. तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हो गया, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हो गया, एंड हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स हो गया. राइट. अब अभी लास्ट स्कैन बचा कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस. Consistent cash from operations. So what we have done, we have added all the 7 scans that are required for the creation of FIPA. Before proceeding to the output, let me make it very clear कि whenever you guys make a combination scan, आप लोग जब भी कभी भी कोई combination scan बनाओ, so it is very very important टू मेक श्योर कि आप लोग जो कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कॉम्बिनेशन स्कैन बनाना है ना, आपको स्टॉक्स फिल्टर आउट करने हैं, देन यू नीड टू इनकॉर्पोरेट मोर ऑफ फंडामेंटल स्कैन्स की कौन सी स्टॉक हाई प्रॉफिट्स दे रहे हैं, आरओई इंक्रीज कर रहा है, या उस स्टॉक का सेल्स इंक्रीज. आपका जो गोल है ना, दैट शुड बी क्लियरली डिफाइंड, एंड उस गोल को जो स्कैन सपोर्ट करते हैं उसके बेसिस पे you will have to create the respective combination scan. For example, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन. सो हम लोग इसको ब्रेक करते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम लोग प्राइस एक्शन का बात करते हैं. सो प्राइस एक्शन के लिए वी हैव दिस कैन क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन. सो एज वी ऑल नो कि अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक के हाई जोन में ट्रेड कर रहा है, दैट स्टॉक इज ट्रेडिंग इन दैट 15% जोन, विच मीन्स दैट स्टॉक इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ऑन दी चार्ट्स. अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, देन दैट स्टॉक इज सपोज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दी चार्ट्स. हो सकता है कि वो स्टॉक अपने 52 वीक हाई ऊपर बना के नीचे आ रहा हो, या हो सकता है कि वो स्टॉक अपने 52 वीक हाई नया बना ले. ठीक है. लेकिन अनटिल अनलेस दैट स्टॉक डजेंट कम आउट ऑफ दैट 52 वीक हाई जोन, वो अपने 52 वीक हाई जोन से बाहर नहीं निकलता है, तब तक वो स्टॉक प्राइस एक्शन वाइज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो इसलिए प्राइस एक्शन यहाँ से फिल्टर हो गया. अब वी नीड टू फिल्टर आउट दो स्टॉक्स जिसका फाइनेंशियल्स भी इंप्रूव हो रहा है. तो फाइनेंशियल्स का जब हम लोग बात करते हैं, देन देयर आर ब्रॉड टू कॉन्सेप्ट्स. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दी ओवरऑल कॉन्सेप्ट, दी ओवरऑल स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट, जो कंपनी का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे. एंड द सेकंड इज द कंपनीज इंटरनल कॉन्सेप्ट, इंटरनल ऑपरेशंस. ठीक है. तो जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है उसके लिए व्हाट वी हैव इज द इम्प्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी. कि इज द कंपनी ग्रोइंग रिटर्न, क्या वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स ग्रो करा के दे रही है, क्या वो कंपनी का जो आरओई है वो साल बाई साल इंक्रीज हो रहा है. सेम गोज फॉर इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. सो व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, की कंपनी जो जितना फंडिंग इन्वेस्ट करी है अपने ऑपरेशंस में, अपने प्रोजेक्ट्स पे, क्या उससे वो जो रिटर्न निकाल रही है, इज इट ग्रोइंग ऑन अ ईयरली बेसिस, और इट इज नॉट ग्रोइंग. तो अगर ये दोनों पैरामीटर है कि हाँ कंपनी का आरओई एंड आरओसी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, देन मीन्स कंपनी का फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहा है. राइट. अब नाउ नाउ लेट्स कम डाउन टू द इंटरनल पार्ट. सो आप लोगों ने कई बार सुना होगा टॉप लाइन नंबर्स, बॉटम लाइन नंबर्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो व्हाट आर दे. सो टॉप लाइन हो गया आपका सेल्स, क्वार्टरली से टॉप लाइन हो गया आपका सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगी एबिटा, एंड बॉटम लाइन नंबर्स हो गए नेट प्रॉफिट. सो अगर किसी भी कंपनी का टॉप लाइन, बॉटम लाइन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज सेल्स, एबिटा एंड नेट प्रॉफिट, अगर तीनों ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर, विच मीन्स की कंपनी का ऑपरेशंस ग्रो हो रहा है. राइट. आप लोग कई बार ये चीज देखोगे कि कंपनी की सेल्स ग्रो हुई बट नेट प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ, या EBITDA ग्रो नहीं हुआ.
क्यों? क्योंकि हो सकता है उस कंपनी की सेल्स के साथ साथ एक्सपेंडिचर भी उतनी ही ग्रो हुई, जिसके वजह से उसके एबिटा या नेट प्रॉफिट में फर्क नहीं पड़ा, उसके मार्जिन में फर्क नहीं पड़ा। कई देखोगे प्रॉफिट ग्रो हो गई, लेकिन ना सेल्स ग्रो हुआ ना एबिटा ग्रो हुआ। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास कोई एक्सेप्शनल इनकम आ गया जो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। हो सकता कंपनी का एबिटा ग्रो हुआ, सेल्स भी ग्रो हुआ, विच मीन्स कि कंपनी का एक्सपेंडिचर कम हो गया। तो दे आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स। तो कई बार क्या होता है कि कंपनीज आर सब्जेक्टेड टू फॉल्स रिपोर्टिंग। कंपनी कई बार अपना प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाती है या कोई एक्सपेंसेस को करती है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। सो टू नलीफाई ऑल ऑफ देम इट इज बेटर टू फाइंड आउट दो स्टॉक्स जिनका नेट प्रॉफिट भी ग्रो हुआ, एबिटा भी ग्रो हुआ एंड सेल्स भी ग्रो हुआ। So that are the safest stocks and that stocks are actually growing on the numbers in the, with respect to their operations. ठीक है? तो इसलिए इन तीनों स्टॉक को साथ में लिया है, इन तीनों स्कैन को साथ में लिया क्वालिफाई करने के लिए। देन वी हैव कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। तो व्हाई कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस? अगर कंपनी को अपना बिजनेस रन करना है देन कंपनी नीड्स टू जनरेट कैश अपने बिजनेस से ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। तभी कंपनी उस कैश को अपने वर्किंग कैपिटल में फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड फॉर इन्वेस्टिंग इन फर्दर प्रोजेक्ट्स कैश यूज कर पाएगी। अगर कंपनी के पास कैश ही नहीं रहेगा देन हाउ द कंपनी विल ग्रो। तो इसलिए इन सातों स्कैन को यूज करके द कॉन्सेप्ट ऑफ फीपा दैट इज फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन बनाया गया है। सो आई एम अगेन रिपीटिंग कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए स्कैन बना रहे हो, कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो, देन यू नीड टू यूज द रेस्पेक्टिव वैलिड स्कैन्स। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्कैन बना रहे हो, कि अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कल किन स्टॉक्स के अंदर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, तो उसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, अकॉर्डिंगली स्कैन्स लेने पड़ेंगे। आप इंट्राडे स्कैन्स के अंदर अगर आप 50 एसए में 200 एसए में लगाओगे तो नहीं चलेगा। लेकिन आप वही इंट्राडे स्कैन्स के अंदर आप 5 एसए में 20 एसए में लगाओगे तो चलेगा। राइट? तो आपको जो आप लोग जो भी कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो ना, उसके पीछे का जो कॉम्प्लीमेंटिंग स्कैन होगा आपको उसको ऐड करोगे तो आपको ज्यादा बेटर आउटपुट मिलेगी। ठीक है? सो दिस इज दी स्टॉक्स पार्ट। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जा रहा है एंड व्हाट यू विल रिकॉल इसकी ये जो सेक्शन है ये एग्जैक्टली स्कैन्स जो अब हम लोगों ने जो स्कैन्स का मॉड्यूल समझा उसका एग्जैक्ट रेप्लिका है। यहाँ पे भी आपको एडवांस फिल्टर्स मिल रहे हैं जिसके बेसिस पे फिल्टर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस आउटपुट एंड डाउनलोड देके आप ट्रैक रख सकते हो अपना, जिसमें आगे जाके आप लोग और फर्दर एनालिसिस करना है कि नहीं मेजर्स ऑफ फिल्टर लगाया हुआ ही है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक परफेक्ट मैच। तो परफेक्ट मैच का मतलब हुआ कि ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो सारे के सारे स्कैन्स को क्वालिफाई करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको 7 आइकन दिख रहा है, मतलब दीज आर द स्टॉक्स दैट हैव क्वालिफाइड ऑल दी 7 स्कैन्स। बट कई बार क्या होता है ना कि कुछ स्टॉक्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं बट वो एक या दो स्कैन में क्वालिफाई नहीं करते, जिसकी वजह से वो बाहर हो जाते हैं। तो वी हैव ऑल्सो केप्ट दो स्कैन्स, दो स्टॉक्स, जैसे एसीसी। एसीसी हैज क्वालिफाइड 6 स्कैन्स। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट देयर का हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। द आउटपुट अवेलेबल विल बी द स्टॉक विच फुलफिल 75% ऑफ द स्कैन्स एडेड बाय यू इन द कॉम्बिनेशन स्कैन्स। तो फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट देयर के अंदर अगर कोई स्टॉक अगर 75% ऑफ द स्कैन से ज्यादा क्वालिफाई करता है तब वो ऑलमोस्ट देयर में आएगा। एंड अगर कोई स्टॉक सारे के सारे स्कैन को क्वालिफाई करता है तब वो परफेक्ट मैच में आएगा। ठीक है? तो इससे आप लोग को बाइफर्केशन मिल गया एंड व्हाई वी हैव डन दिस, ताकि अच्छे अच्छे स्टॉक्स किसी एक या दो स्कैन में नहीं क्वालिफाई होने की वजह से वो मिस आउट ना हो जाए। ठीक है? अब आप लोगों को मैंने बोला था कि जो स्कैन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज बैक टेस्टिंग, दैट इज दिस थिंग। ये माई कॉम्बिनेशन स्कैन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि आप लोग कभी भी कोई कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो ना, तो आप लोग को ऑब्वियसली उसका आउटपुट को बैक टेस्ट करना पड़ेगा, उसको पीछे रख के देखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने एक इंट्राडे का कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया, ठीक है, आप लोग ने 5-6 स्कैन बना के एक इंट्राडे का कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया, जिसके बेसिस पे आपको वो स्टॉक्स दे रहा है जो नेक्स्ट डे इंट्राडे में मोमेंटम देगी। राइट? या तो अपसाइड मोमेंटम भी हो सकती है, डाउनसाइड मोमेंटम भी हो सकती है, क्योंकि इंट्राडे में तो आप बाई सेल भी कर सकते हो, शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। राइट? तो वो मोमेंटम देगी। अब वो आउटपुट आ गया बट आपको उस आउटपुट पे भरोसा नहीं हो रहा कि आप उस आउटपुट पे ट्रेड करे कि नहीं करे। तो व्हाट यू कैन डू इज आप इस पे आके बैक टेस्ट कर सकते हो कि 1 जुलाई को जो स्टॉक्स आ रही थी वो 2 जुलाई को कैसा परफॉर्म की। क्या 2 जुलाई को अंदर उसके अंदर इंट्राडे मूवमेंट्स मिला? इफ यस देन किन स्टॉक्स में मिला? क्या उन स्टॉक्स का कोई रेस्पेक्टिव फिल्टर लगाया जा सकता है कि नहीं जा सकता, जिसपे आप उन स्टॉक्स को और बेटर फिल्टर कर लो, या किसी और स्कैन को ऐड करने से वो स्टॉक्स और बेटर निकल के आ सकते हैं? और या नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मेरा कॉम्बिनेशन स्कैन, दिस कॉम्बिनेशन स्कैन इज नॉट वर्किंग एट ऑल, इसका जो आउटपुट आ रहा है दिस इज नॉट trustable, then what you can do is you can come over here and you can edit this scans। तो अगर आपको समझिए कोई स्कैन को डिलीट करना है कि लेट्स डिलीट दिस रेस्पेक्टिव स्कैन, तो आप उस स्कैन को यहाँ से क्रॉस करके डिलीट कर सकते हो एंड देन यू कैन फर्दर ऐड दी रेस्पेक्टिव स्कैन्स जो आपको और स्कैन्स को ऐड करना है। ठीक है? सो लेट मी टेल यू कि यू कैन ऐड
maximum of 10 individual scans in each combination scan. ठीक है, in each combination scan you can add maximum of 10 individual scans and you can make up to 20 different combination scans. ठीक है, हम लोग ने एक रिक्वायरमेंट रख के रखी है ताकि सो दैट कि हम लोग की जो यूजर वो कहीं ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि क्या होगा अगर 15-20 स्कैन्स ऐड कर दोगे तो यू विल सी कि आउटपुट कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, एंड इट विल बी मोर कंफ्यूजिंग। इसलिए हम लोग इसके लिमिट को सिर्फ 10 तक ही लिमिट किया है। ठीक है, so let's quickly understand if there are any queries. So yes, I will be sharing the PDF of the combination scans. मैं अभी आप लोग सबके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। Please download it from the chat box. Everyone, I've shared the combination scan of Vivek sir's PDF. Please everyone, please download it. Saurav ji, you can raise out your query to the support team and I will surely answer to it. Sir, how many cart apply mobile screen? Sunil Kumar Meena ji, sir, I cannot understand your query. Please repeat your query again. Alina Mohanji, ROE and ROC are both very important and are important at their own respective levels. So they are used for different purposes, and obviously, using them both together is a very good indicator. Yes, Ajay Prasad ji, आपको recording मिलेगी इस session की. You can see the recording within this recording will be uploaded on the YouTube, on the Stockage YouTube, or you can also search recording on Stockage Social, and you will get the recordings over there. Sandeep Gunaji, obviously it is difficult to work on 25 to 30 shares. So basically you will have to pick 5 to 6 shares out of those 25 to 30 shares. And then you will have to work only on those 5 to 6 shares. Everyone, please note that Swati ji have just shared the PDF right now again. In the chat box, you can come to the chat box and you can scroll up and you will see the PDF shared by Swati ji and me. Right. So let's proceed with the trending stocks. ठीक है? So मैं आप लोग को बता दूं कि ट्रेंडिंग स्टॉक जो है ना, मार्केट्स 9 o'clock पे चालू होती है। 9 to 9:07 प्री मार्केट सेशन रहता है एंड फ्रॉम 9:08 AM की प्री मार्केट प्राइसेस आर डिसाइडेड। So you can come to this section at 9:08 AM itself, and you will see that the pre-market prices are already updated over here. That's right कि ये जो सेक्शन है यहाँ पे रियल टाइम पे प्राइसेस अपडेट होती है एवरी मिनट। सो दिस इज द गो टू सेक्शन फॉर एवरी ट्रेडर एंड इन्वेस्टर आउट देयर who wants to keep a track of what's happening in the market throughout the day. ठीक है, what you need to do is you need to just come to the trending stocks which is over here in the explore section. आपका explore section में trending stocks पे आना है एंड यहाँ पे आपको सारी डेटा मिल जाएगी जो मार्केट्स के अंदर हो रही है। ठीक है, सो एट फ्रॉम 9:15 AM जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है एवरी मिनट दिस सेक्शन इज गेटिंग अपडेटेड एवरी मिनट। ठीक है, तो दी फर्स्ट ऐप इज प्राइस मूवर्स। यहाँ पे भी मेजर स्टॉक्स को हम लोग ने फिल्टर अप्लाई करके रखा है, लाइक आई सेड, टू अंडरस्टैंड दी ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट कि कितने ज्यादा स्टॉक्स है जो गेनर साइड में है, कितने ज्यादा स्टॉक्स है जो लूजर साइड में है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्केट का सेंटीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम दिस सेक्शन आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो एंड आप इसमें फर्दर फिल्टर्स भी लगा सकते हो कि आपको किन स्टॉक्स को ट्रैक रखना है। एंड यहाँ पे जैसे जैसे वो स्टॉक्स में मूवमेंट आएंगे ऑन दी गेनर एंड लूजर साइड, वैसे वैसे एवरी मिनट दी स्टॉक्स विल स्टार्ट गेटिंग अपडेटेड। एंड यहाँ पे जो सॉर्टिंग है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो सॉर्टिंग है ऑन दी बेसिस ऑफ चेंज परसेंटेज है। तो जो सारी गेनर्स होगी वो सबसे ज्यादा टॉप पे होंगी एंड जो लूजर्स होंगी, जो सबसे ज्यादा लूजर वो भी टॉप पे होंगी, जिससे आपको मार्केट के एक्चुअल गेनर्स एंड लूजर्स आपको दोनों साइड से दिख जाएंगे। ठीक है, अब आता है वॉल्यूम शॉकर्स। This tab is very very important for all traders out there
स्पेसिफिकली फॉर ऑल ट्रेडर्स आउट देयर, कि बेसिकली आपको समझिए, मैंने अगर आप लोगों को समझे इंट्राडे में आप लोग को स्टॉक्स कैसे पिक करना है। ठीक है, तो आप लोग जब इंट्राडे में आप लोग को स्टॉक्स पिक करना है, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग को वॉल्यूम शॉकर्स में आए। फॉर एग्जाम्पल राजेश एक्सपोर्ट्स आज 10% भागा हुआ है। ठीक है, राजेश एक्सपोर्ट्स हैज राइजन 10% टुडे। सो इसका जो एवरेज वॉल्यूम है ना राजेश एक्सपोर्ट्स का, दिस इज एवरेज वॉल्यूम, इट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ प्रीवियस 5 days, दैट इज 2,50,189। सो एज सून एज ड्यूरिंग द मार्केट, ठीक है, ड्यूरिंग द मार्केट, राइट। सो लाइक आई वाज सेइंग कि ड्यूरिंग द मार्केट, एज सून एज आज का इंट्राडे के अंदर, इन दी ड्यूरिंग द टुडेज मार्केट सेशन, एज सून एज राजे एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम को क्रॉस किया, दैट इज 250,189 से 250,190 भी हुआ ना, सो दिस स्टॉक विल कम ओवर हियर इन दिस सेक्शन। सो अगर आप देख रहे हो कि कोई स्टॉक ऐसा है जो अपने प्रीवियस 5 days के एवरेज वॉल्यूम को क्रॉस कर चुका है एंड वो यहाँ पे आ चुका है, एंड दैट स्टॉक इज एन गेनिंग मोमेंटम साइड, दैट मीन्स कि उस स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, then obviously you can pick that stock for an intraday trade. फॉर एग्जाम्पल 2,28,00345। सो आज इस स्टॉक के अंदर 91x ज्यादा ट्रेड हुआ है विद रेस्पेक्ट टू एवरेज वॉल्यूम, एंड आई गेस दैट इज वन ऑफ द रीजन कि ये स्टॉक आज 10% भागा हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर 2.5 लाख का ट्रेड हुआ है, तो ऑब्वियसली ये ड्यूरिंग द 5 to 10 minutes ऑफ द मार्केट खुलते ही हो चुका होगा, एंड दैट इज द रीजन कि इतना आगे इतना वॉल्यूम हो पाया। सो दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज ट्रेडर्स आउट देयर, एंड यहाँ पे आप कई सारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो अपने एवरेज वॉल्यूम के काफी ज्यादा पास है, मतलब एज सून एज any stock that crosses over their average volume, this that stock will respectively come over here. ठीक है, with along with it their LTP and change percentage। तो आपको साथ ही साथ आपको यही पे समझ में आ जाएगा कि किन स्टॉक्स के अंदर सप्लाई ज्यादा हो रही है कि डिमांड ज्यादा हो रहा है। जैसे इसके अंदर राजेश एक्सपोर्ट्स के अंदर डिमांड काफी ज्यादा था, इसलिए प्राइसेस भी बढ़ी एंड वॉल्यूम भी बढ़ा। ठीक है, अगर आप महिंद्रा महिंद्रा देखोगे तो इसके अंदर भी वॉल्यूम बढ़ा हुआ था, 8x ज्यादा था, बट ये स्टॉक नीचे गिरा हुआ है, विच मीन्स कि इस स्टॉक के अंदर सेलिंग ज्यादा हो रही थी। ठीक है, तो इससे आपको ये आइडेंटिफाई होगा। नाउ लेट्स कम टू 52 वीक हाई लो एंड ऑल टाइम हाई लो। सो लाइक आई वाज सेइंग कि आपको इंट्राडे के अंदर ही दिस सेक्शन इज फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स एज वेल एंड फॉर स्विंग ट्रेडर्स एज वेल, फॉर स्विंग ट्रेडर्स फॉर पोजिशन ट्रेडर्स एज वेल। From this section, 52-week high low and all-time high low, you will get to know these stocks that are making or that are giving a new all-time high breakout or 52-week high breakout during intraday itself. आपको इंट्राडे में ही पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है या नया 52 वीक हाई बनाया है। तो अगर आप अर्ली आइडेंटिफाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल शॉपर स्टॉक, ठीक है, शॉपर स्टॉक का अगर आप चार्ट देखोगे, मैं इसका 1 ईयर का चार्ट देखता हूँ, तो इसका जो 1 ईयर का चार्ट है, इसके अंदर इसका जो ऑल टाइम हाई था इट वाज 852 भी खाया था, इट वाज 888.50। ठीक है, सो आज इस स्टॉक ने इस लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया है, एंड आज स्टॉक ने ऊपर में 920 तक गया। तो ऑब्वियसली अगर आप ये ट्रैक रखोगे, ये स्टॉक इतने दिन बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। सो अगर आप एज सुन एज दिस स्टॉक क्रिएट्स अ न्यू ऑल टाइम हाई एंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यू 52 वीक हाई और न्यू ऑल टाइम हाई एंड द एलटीपी इज वेरी लेस, then you can identify those stock and then you can track it, and then you can eventually make an intraday trade or a swing trade for more upside potential। ठीक है, तो आप यहाँ पे हाई और लो दोनों ट्रैक रख सकते हो। ऑब्वियसली अभी बुलिश मार्केट्स है तो इसके अंदर बहुत कम चांसेस है कि कोई स्टॉक हमने 52 वीक लो या ऑल टाइम हाई लो पे होगा, एटलीस्ट फ्रॉम द मेजर स्टॉक्स पार्ट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द 52 वीक हाई लो एंड ऑल टाइम हाई लो। तो यहाँ पे आप लोग को इंट्राडे के अंदर ही समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो 52 वीक हाई ब्रेकआउट दे रहे हैं, नया 52 वीक हाई बना रहे हैं, या नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहे हैं, ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट विजिटेड, ये वो स्टॉक्स है जिनको सबसे ज्यादा विजिट किया जा रहा है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी ट्रेंडिंग स्टॉक्स, एंड आई एम टेलिंग यू ट्रेंडिंग स्टॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर ऑल ट्रेडर्स आउट देयर जिन लोगों को मार्केट में ये पता रखना है एंड दे वांट टू बी अपडेटेड कि 9:15 से 3:30 के बीच में कौन से स्टॉक्स है जिसके अंदर सबसे सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा है। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स को ट्रैक रखना। अब लाइक आई वाज सेइंग इन दी इनिशियली दैट आई विल टेल यू कि हाउ कैसे
we can use stock scans, my combination scans, and trending stocks in sync together to drive our own edge. So what you need to do is कि आप obviously it is not possible for any people out there, for any trader or investor out there to track and analyze all those 5,000 stocks during the market hours. So what you need to do is your work starts before the market starts. So basically, day before yesterday, जैसे ही आप you guys receive the EOD notification that stockage EOD data has been processed, stockage EOD data and alerts has been processed. What you need to do is आप लोगों को stockage के application पे आना है, आप लोगों को stockage scans में जाना है, एंड देन यू नीड टू चेक योर फेवरेट स्कैन्स, जो स्कैन्स को आपने शॉर्टलिस्ट करके रखा है कि इन स्कैन्स को आपको डेली बेसिस पे चेक करना है, राइट, इंडिविजुअल स्कैन्स। तो आपने उन इंडिविजुअल स्कैन्स को चेक किया, ट्रैक किया, उसमें फर्दर फिल्टर्स लगाए, उसमें कुछ कुछ स्टॉक आपको बहुत अच्छा समझ में आए, देन यू वेंट इनसाइड दो स्टॉक्स एंड इफ यू सी कि हाँ वो स्टॉक्स काफी अच्छा मोमेंटम है एंड यू नीड टू ट्रैक और टेक अ ट्रेड और इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स, तब आपने उन स्टॉक्स का लिस्ट बना लिया। ठीक है, यू मेड अ लिस्ट ऑफ 2 to 3 स्टॉक्स और 5 स्टॉक्स। ठीक है, देन यू वेंट टू माई कॉम्बिनेशन स्कैन। अगर आपका कोई माई कॉम्बिनेशन स्कैन बना हुआ है, देन उस माई कॉम्बिनेशन स्कैन के बेसिस पे आपने कुछ स्टॉक्स फिल्टर आउट किए ऑन दी बेसिस ऑफ आज का डेटा। आपने उन स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया, आपने उस स्टॉक्स का लिस्ट बनाया कि हाँ ये स्टॉक्स आपके माई कॉम्बिनेशन स्कैन में आया है। सो ऑब्वियसली एक फर्दर लेवल ऑफ चेकिंग हो चुकी है, जो जो आपको इनिशियली चेक करना पड़ता था, तो एक लेवल ऑफ चेकिंग हो गई है। तो वॉट यू हैव डन इज कि आपने स्कैन्स और माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स को यूज करके अराउंड 8 से 10 स्टॉक का एक लिस्ट बना लिया, एंड आपको कल आपको उस 8 से 10 स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है, या अपने ब्रोकर टर्मिनल में या स्टॉकेज के वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। एंड आपको उसको कल मार्केट में खाली उन 8-10 स्टॉक को ही ट्रेड रखना है ड्यूरिंग द इनिशियल मार्केट आवर्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डे एज सुन एज द मार्केट स्टार्ट्स, दैट इज 9-8 AM पे प्री मार्केट प्राइसेस डिसाइड हो जाती है। तो आपको ये देखना है कि 9-8 AM पे वो जो आपने जो 8 से 10 स्टॉक को फिल्टर आउट किया, दोज 8 to 10 स्टॉक, हाउ आर दे परफॉर्मिंग, आर दे ऑन द ग्रीन साइड और आर दे ऑन द रेड साइड। अगर दे आर ऑन द ग्रीन साइड एंड इट दे आर एज पर योर ओन एक्सपेक्टेशन, देन ऑब्वियसली आप उन स्टॉक्स को मार्क रख के रखोगे एंड यू कैन ट्रेड इन दोज रेस्पेक्टिव स्टॉक्स। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके अगर ऐसा बहुत अच्छा होगा कि आपने 10 स्टॉक को फिल्टर आउट किया एंड 10 के 10 स्टॉक मोमेंटम है, देन ऑब्वियसली इट योर आपका एनालिसिस काफी अच्छा जा रहा है, आपका एनालिसिस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड देन यू नीड टू पिक 2 to 3 स्टॉक्स फ्रॉम दोज 10 स्टॉक्स, एंड आपको उस 10 स्टॉक में 2-3 स्टॉक में ट्रेड करना है। और अगर आपके 10 स्टॉक में से 4 से 5 स्टॉक ही आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली मूव कर रहे हैं, देन आपका काम और आसान हो गया, आपको सिर्फ उन 4-5 स्टॉक्स में ट्रेड करना है, एंड यू कैन मेक अ इंट्राडे ट्रेड और यू वांट टू मेक अ स्विंग ट्रेड, आपने उसमें एंट्री ले ली एंड यू कैन अकॉर्डिंगली प्लान योर एग्जिट्स। ठीक है, ये हो गया इनिशियल मार्केट आज का। अब जब मार्केट्स में आपने उन 4-5 स्टॉक के अंदर आपको लग रहा है कि मोमेंटम खत्म हो गया या कंटिन्यू हो रहा है ना, आप उसको ट्रैक रख रहे हो एंड यू वांट टू फाइंड मोर न्यू अपॉर्चुनिटीज, कि आपको अगर इंट्राडे में और कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, देन व्हाट यू नीड टू डू इज आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स के थ्रू ही यू कैन कम टू द वॉल्यूम शॉकर सेक्शन, और यू कैन कम टू द 52 वीक हाई लो एंड ऑल टाइम हाई लो। सो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे आके आप उन स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हो जो स्टॉक्स में काफी ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, जो अपने प्रीवियस एवरेज वॉल्यूम को क्रॉस कर चुके हैं एंड उसके अंदर प्राइस मोमेंटम भी आ रहा है, और या तो साथ ही साथ उन वो स्टॉक्स एक नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट बना रहे हैं, 52 वीक हाई ब्रेकआउट बना रहे हैं, एंड उसके बेसिस पे उन स्टॉक्स को फिल्टर आउट करके भी उसके अंदर शॉर्ट स्विंग या इंट्राडे ट्रेड्स ले सकते हो। सो बेसिकली क्या होगा, आप ये एक प्रोसेस है, दिस इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस। आप जैसे इस प्रोसेस पे उतरोगे, दिस प्रोसेस हम लोग ने अपने प्रीवियस यूजर्स, पास्ट यूजर्स एंड फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस वी हैव नोटिस दैट कि कोई यूजर अगर इन प्रोसेस को फॉलो करता है एंड दे आर वेल प्रिपेयर्ड बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स, देन उनका मार्केट में उनका मोर टाइम ट्रेड्स लेने में जाता है रादर देन ऑन स्टॉक आइडेंटिफिकेशन में जाता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट के दौरान आप जब तक कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करोगे एंड जब तक यू विल बिल्ड योर ओन कन्विक्शन कि हाँ ये स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है, उतना देर में तो हो सकता है वो स्टॉक भाग जाए, वो स्टॉक में मूवमेंट खत्म हो जाए, राइट, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड खराब हो जाएगा एंड यू विल एंड अप बाइंग एट हायर प्राइसेस। इसीलिए वी ऑलवेज से, एंड हर एक कोई मार्केट एक्सपर्ट यही बोलेगा कि आपकी जो भी एनालिसिस है, जो भी वर्किंग है, आप उसको मार्केट चालू होने के पहले खत्म कर लो, सो दैट मार्केट में आपका सारा ध्यान सिर्फ प्रॉपर ट्रेड्स लेने में जाए, प्रॉपर एंट्रीज एंड प्रॉपर एग्जिट्स पे जाए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी टुडे सेशन। so let's quickly understand what are the queries. संदीप कुरान जी, ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी फर्स्ट 2-3 मिनट्स में होती है, काफी टाइम काफी स्टॉक्स में थ्रू आउट द डे वो मूवमेंट रहती है मार्केट डे, तो ऑब्वियसली विल हैव टू इवेंचुअली फाइंड आउट दोस काइंड ऑफ स्टॉक्स।
I'm sharing the PDF again, and any one of you who Yes, cannot see I the think PDF, I have shared the PDF again. I would yes, actually the thing is what happening is that people like there are a lot of chat which is coming down. So because of which some of our listeners are missing this thing. So I would request you all please see that I have uploaded a document again from my name. My name is Swati and it has been uploaded. So let me just show it to you again. Let me just upload this one more time so that I can help you. See everyone, please kindly check that. I have again posted it. It has got a green tick and I have posted in the chat box. Uh, uh, thank you so much, Swati. yeah, Vikramji, So, I hope you have received it and other people. Okay, Yash, now please over to you. So sorry, Yash, like, I took it no, from no, no. between. And like, just try to combine like both English and Hindi. And I know, Yash, you're Yeah, doing, yeah, but still, I would request you to do that. yeah, yeah. Okay, If okay, I will someone do is this. not receiving the so we are sharing the PDF of the combination scan of Vivek sir, not the presentation of today's session. If no one is receiving, that's okay. Nisarji, you have mentioned your email ID. We will email it to you again. No worries. Maybe like you all are facing everyone. Yes, so we have selected the documents which we are sharing. It is shared with everyone. So please do not share your email ID here because everyone is here. So do not do that. What we will do Oh, is we will upload the PDF at StockX social platform too. And you can just see from the customer delight handle in next 10 minutes, you will see that we have uploaded the PDF along with this. Yeah. Thank you. So do not share your email ID here, sir, because it is open and visible to everyone. Because you are yeah. sending the email ID to not only to the panelist and the host, but you're sharing it with everyone. Do not do that. All right. Yeah. Okay. So everyone, please do not. Thank you, Swati, so much. So everyone, please do not share your email IDs. I have mentioned the support email ID. So what you can do is you can mail at this mail ID, and you can ask for the Vivek Badasa combination scan, and they will surely mail you in your respective IDs. Abhishek Wasnikar ji, you can log into the social platform, and over there you can go into your profile settings. Over there you will find or you can search also Vivek Sir's combination scan PDF, and you will get it. And if you are not able to get it, then you can mail at support@stockage.com, and they will surely mail it to you. Very well, Dhanda Paniji. I'm extremely sorry if you like at times we do need to maintain both Hindi and English. But if you still have any queries, then you can watch the recording, or you can mail us or mail the support team with your respective queries, and I will surely look into it and answer all of them. Rina Mohan ji, yes, recording will be available. It will be available on the StockX social Right. platform. Alina ji and everyone, Yash, I would just also like to convey one thing that today's Yeah. session's recording will be uploaded at YouTube channel of Stockage. So whenever you attend any session of Stockage, it goes uploaded the very same day under Stockage YouTube channel. Okay. And what we will do is the combination scan PDF of Vivek sir, what we will do is we will upload that in the description box too. सो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन So thank you so much. We are extremely apologetic for the non-Hindi session. Very ji. We'll look into it, and if you have any queries, then you can reach out to the support team. Like I said,
Sandeep Ranji, can you please reach out with your queries to the support team, and I will surely look into it. So thank you so much, everyone. I hope you all liked the session, and I would be really grateful if I was able to provide any value to all of you. So let's go ahead and let's learn what we have learned today, and let's practice everything, and let's implement all those learnings on the market itself, and let's keep it as a habit. Thank you so much, everyone. All right, Yash, thank you. So, Yash, like I'll just explain everyone how to see the recording of today's Okay. session at StockX Social also. I'll just take it over. I'll just share my screen for Yeah. everyone's, Thank you, Swati. yeah. So I'll just take it forward from my end and you may leave. Yeah, so I'll just share my screen for everyone. Just a quick one which I would like to show you. So from here, the 9 dots, I have switched to the Stockage Social app. The first thing you all should remember that आप सभी के पास में you all should have two application downloaded. One is Stockage app, another is Stockage Social. For sure, you have to do it. I have given a lot of details every Monday. Generally, I do on Stockage Social के ऊपर मैं session cover करती हूँ. Just the last Monday, I was not keeping well. That is why I did not cover. But every Monday, I generally do that. Now, how do you see the recording of the session? So for all the club members here, you have to simply write recording. And if you click on the recordings, you will be able to find all the recordings, all the session which we conduct, it's a recording, you get it here. So yesterday was Tuesday, we covered on the fundamental thing. So when I search recording, the first session, the last sessions comes up at the top. You can even click on the three dot and add it to bookmark so that you can refer later, right? But for the non-club members also, you are even important, equally important for us. So for the premium and the pro user, you have to simply follow a basic step, which I'm going to show you all now, okay? I would request to everyone to please kindly have all your eye on my screen. So on the Stockit Social, I go and I just write record, reco, couple of letters I'll write. तो आप सबको recordings दिख जाएगा first hashtag, ठीक है? When I write record, reco, all of that, ठीक है? And then you have to click on the add to search. Please आपको add to search करना होगा. You all have to do add to search because this is an advanced search you are doing. And then you can write customer. Okay, that is the R handle, customer delight team handle. And then you have to click on add to search one more time, right? Then you click on the search button. All the recordings will be available right here. And whichever you wanted to refer, आप ये 3 डॉट पे क्लिक करके आप add to bookmark कर सकते हैं. I hope this is clear how to see the recordings. Okay. One more thing, as I said, that you know how to see the PDF. There are a few queries which I am getting. I'm really sorry, and this is a sorry from my side, from the core of my heart. If you are not finding the PDFs, because there are few people who confirmed me in my private chat that they have received the PDF. But however, no worries if you have not received. What we will do is once we upload this recording tomorrow morning, we will attach here the PDF too for your reference. Also, we will try that in the YouTube channel when we record this today's session. In the description box, we will attach the PDF link which you can download it. The combination scan of Vivek sir. I hope this is clear to all of you. आप सबके लिए clear है. मैंने कोशिश करा है that ये समझाने के लिए. Rabin ji, I think you're asking about the Ask Me expert. That session of that recording we are not providing. That is only for the club members that we do every 7:30 p.m. उसकी recording sir आपको नहीं मिल पाएगी because actually क्या होता है सर वहाँ पे ना क्या होता है Q&A आते हैं generally और उसका relevance फिर रह नहीं जाता है अगर हम उसकी recording बाद में भी दे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. So I would request you that आप up to date sessions attend करें. Ajit ji had requested me to repeat one more time related to the recording. So Ajit ji, can you kindly confirm me that whether you are a premium member or pro member or a club member?
जस्ट आप कुछ भी लिखते हैं तो मैं एक वर्ड भी लिखते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने कौन सा प्लान लिया है, सो दैट आई कैन हेल्प यू अजीत जी। ओके अजीत जी, नो प्रॉब्लम। ओके, सो मैं सबसे पहले अपनी सर्च को क्लियर करती हूँ। आई एम क्लियरिंग इट. So I'm on the home screen of the StockX Social. In the search button, I will write record, reco, whatever couple of letters I'll write. The recording first hashtag will come down. You have to click on the add search, not here in the recording tab. Okay. आपको क्लिक करना है add to search. Automatically recording select हो गया है. ठीक है, that you can see. Now I will write customer. The moment I write CUS, CUSTUMER, whatever, couple of letter, customer delight team का handle आ जाएगा. And then again, you have to click on add to search. Then you click on the search button, and this is how you will be able to see the results related to the recording of the all session that we conduct. Okay. All right. So thank you everyone for taking out your time and attending this session. Like, so we conduct this stockage smart session from Monday to Saturday. We do not consider any national holiday. अगर national holiday हो, दिवाली हो, Eid हो, whatever it is, we conduct this session without fail from Monday to Saturday. And the topics are repeated as per the roster. And that is what you have to follow. So you can definitely, attend this session to make the most useful output of the stockage application. Absolutely. There is someone who have written with SS. So I really do not know your full name. So I am not able to understand that your name, sir. So in that case, I would like to let you know that the combination scan which Vivek sir has improvised. So with every due quarterly, whenever he review his combination scan or a monthly basis, हम जब भी combination scans आपको देते हैं वो revised वाला देते हैं. So you need not to worry. जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो एकदम updated होगा. That would be the updated one. All right. Okay, so thank you everyone. So we look forward again to meet you tomorrow. Tomorrow we're going to cover a lot of things related to sector rotation, related to strategies. So there are ready-made strategy which we're going to cover tomorrow. कि इसका benefit आप कैसे उठा सकते हैं, right? सरफराज जी, आपका कुछ क्वेश्चन मैंने मिस कर दी हूँ तो मैं माफी मांगना चाहूंगी. आप एक बार दोबारा अपना सवाल को बस वो कॉपी पेस्ट कर दीजिए ताकि मैं आपका सवाल देख सकूं. अगर उसकी रिप्लाई मुझे आती है तो मैं अभी तुरंत दे दूंगी. अदरवाइज आई जस्ट लाइक टू टेक इट ऑफलाइन इफ इट इज अपार्ट फ्रॉम माय नॉलेज, इफ आई एम नॉट अवेयर अबाउट योर क्वेश्चन. सो जस्ट एक बार आप अपना क्वेश्चन दोबारा पोस्ट कीजिए सरफराज जी. आई स्टिक टू द स्क्रीन फॉर श्योर. Thank you, Leena ji. Thank you so much. Thank you, Balaji. आई स्टिल सरफराज जी, आपकी क्वेश्चन का मैं वेट कर रही हूँ. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे बताइए. आई वुड ऑल्सो लाइक टू नोटिफाई एवरीवन दैट if you go to the stockage website, okay, you get to see our customer delight team number, okay, which is this number. So for the stockage general support number you can call. If you're a club member, you can call at the stockage club support number. These numbers are active from Monday to Sunday. And the timings are from 9:15 to 8 p.m. But if for any reason, if we miss out any call, we will make sure that we definitely call you back. Yes, the questions are appearing on real. Yes. Mohammed ji, the questions are appearing to me, whatever you are, but then I don't see your question right now. आपको एक बार अगर आप दोबारा पोस्ट कर देंगे तो it will be very good. Or else, like, you can call up at this number. We'll definitely try to help you. So these are the number which you should definitely save in your phone. And ये fundamental Okay, all right. So thank you everyone. And Mohammed ji, we will request you to please kindly reach out to me, us in person so that we can definitely help you. Thank you everyone. Take care. Bye bye.